personality for the cyber law and information security advisor. He has done his PGDM and ethical. The LLB and PGDCL, and he is also ICRA certified. Ethical hacker also. Correct. He also provides his corporate services for in advising the cyber related the cases, and he has professionally advised more than 700 cyber cases till this date. Correct. Let me tell you, he has filed Gujarat first cyber fraud case for the compensation in special cyber court for of adjusting officer under IT Act 2000 at Gandhinagar, and he has also filed the first cyber law matter for Gujarat in Cyber Appellate Tribunal, New Delhi. Correct. So he is the person who will guide us for the what is to be taken care of, what kind of attack that can be possible nowadays in the world. Correct. So we will go through various strategies, various tools and techniques that can be used to prevent such kind of attack. Correct. And more so, one more thing I would like to add over here is that just knowing the tools and techniques, that is not enough. You have to do the exercise and practice also. Correct. And knowing this stuff in the right manner, that is most important, because to be an ethical hacker you first have to understand the mindset and the technique of the hacker. Then and also then then and only then you can prevent the any attack or maybe any threat. Correct, sir? Correct me if I'm wrong. That is what I understand from the perspective of cyber world. So let me straightforwardly hand over the control of presenting to the Manan Thakkar sir, and then after our session will go on, and I will be over to moderate the session along with me. Professor Nitish Upadhyay is there, Professor Yogesh Prajapati is also there. So if any problem is there, then you can raise your hand and you can ask your question by the question answer section. Okay, thank you. Manan sir, please you can take over the session. I'm muting myself. Sir, you are not audible. No, sir. Yes. Okay. Now it's audible? Yeah. Perfect. Yes, sir. Yeah. So thank you, Ravi sir, and all faculties of I think U Patel College. Thank you, IEEE, for inviting me over here. And as introduced, I'm Manan Thakkar. I'm a cybercrime lawyer as well as a security consultant, as well as one of the ExCom members of the IEEE Gujarat section. It's my privilege to share some knowledge with all the young participants. So I'll directly start my presentation. Right, that is the way to go. Just a moment, we'll take some. Yeah. Is it visible to everyone? Is PPT is visible to everyone? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Oh, perfect. Perfect. So as you all know that, today's topic is cyber crimes, legal remedies and solutions. And
used to with this WebEx. Yeah. So, as introduced, I am from CLS and we are a cyber law firm. I'm not going to discuss more on this. We provide a lot of honorary services to various, police department and other universities and all. This is a copyrighted presentation, so if somebody needs a copy, I can share by removing some cases, so you can send me an email for that. I'm starting with some disclaimer, which is very, very important for all you young students to understand. This presentation is not going to give you some, clear answer regarding a particular question, right? This is a broad presentation for a discussion, education, and awareness purposes. Whenever you face some cyber attack or if you want to do something in the cyberspace, please take a right. This is just for your basic awareness, and this is not for some substitution of some professional advice. So I'm starting with this today's presentation included slide. So first of all, we'll discuss some of the recent cyber cases, mostly those cases which either we as a law firm, we as a cyber law firm, we have dealt, or maybe we have gone to the court or police. So those kind of cases. Then we'll discuss some of the legal provisions of Indian cyber law. Indian cyber law is a very big law. So we cannot cover everything in one session, but I'll discuss some of the important provisions. Then we'll discuss very important some preventive techno-legal solutions, which we'll discuss as a part of presentation as well, but also one slide I have put. And the fourth topic is very unique topic, which nobody is talking right now, which is a very important issue, is cyber stress and Mahamantra meditation. So you all know that there are a lot of cyber issues happening in everyone's life, and a lot of stress is getting created. So there's a great technique called Mahamantra meditation, which I am practicing and I have seen worldwide across, lakhs of people are also practicing. So I'll share what is that. I have some research paper on that as well. So I'll also share that. We are starting with some recent cases, and I want all of you to read the cases, at least few lines, so that you can easily connect with it. These are the legal things, so it is not like that I can just talk to you and you'll be able to understand. Just try to read this. So just see the first case. So I think this slide is creating problem, Ravi. Yeah, this is the first slide. See that? So one girl student is arrested by a cyber crime cell for creating a fake profile of her ex-boyfriend. He used boyfriend's personal photographs on the fake profile. So I hope you are aware with this kind of cases. This is a case of identity theft. In a cyber crime law, it is called crime of identity theft. जहाँ पे आपकी जो identity है, if somebody is misusing on the cyberspace, then that is called cyber crime. मिनिमम 3 साल तक का जेल हो सकता है, और उसके अलावा सामने वाले पर्सन को जितना भी लॉस हुआ है फॉर दोज लॉसेस कंपनसेशन का भी जो डैमेजेस का भी एक अलग से केस फाइल हो सकता है. इन दिस केस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये एकदम आपके यंगस्टर के रिलेटेड cyber form. क्या होता है कि when you are in a college, when you are in a company, maybe in a young age, you might be connected with somebody and you might be having some relationship with somebody, and suddenly ऐसा हो जाता है, you understand that in a funny language if I can tell you, ऐसा हो जाता है कि कंकोत्री छपने से पहले मैरिज कार्ड, कंकोत्री is a गुजराती वर्ड, but मैरिज कार्ड छपने से पहले कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, and some of the other party might become in गुजराती और हिंदी we call it दुखी आत्मा हो जाते हैं. And then out of the aggression, out of the this kind of gussa, this person might create a fake profile of somebody else, and he or she might believe इसमें कुछ नहीं होने वाला है, because nobody is going to come to me, and Facebook तो American company है, and all these things are ultimately nothing not going to be traceable. So finally people create this kind of fake profile. Immediately cyber crime में case file होता है. It's very easy for police department to detect this kind of fake profiles, and immediately all the service company Facebook है या whatever maybe आपका Instagram है, any service company, they have to provide details to the investigation agency, and based on the details immediate arrest आता है. उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चलता है. जो पर्सन ये करेगा उसका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड. Therefore, be away from this kind of nonsense, right? All you are young people, all you are young, good, studying in a very highly reputed college, reputed university. So it is your responsibility कि इससे दूर रहे, और अगर कोई ऐसा कर रहा है, so definitely go to the cyber crime cell, file this kind of complaint, and you will see a great result in this kind of case.
case for all you young people. One boy student is arrested by cybercrime cell for spreading the fake news that his teacher, lady teacher, is having affair with the principal. अब देखिए ये भी आजकल होता है ना. There are many cases that you come across जहाँ पे colleges में somebody is not happy with some teachers whatever behavior, and because of that he or she might do this kind of nonsense, spreading this kind of fake news without any authority, without any kind of a clarification on data will definitely lead to a legal trouble for that person. और इसमें साइबर क्राइम का तो केस होगा ही होगा, उसके अलावा डिफेमेशन का भी केस होगा. डिफेमेशन मतलब आपने वर्ड सुना होगा, बदनामी जिसको बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बदनक्षी बोलते हैं. So this may also lead a lot of trouble to somebody who is doing this kind of activity. See the next one, again a similar kind of story. One software engineer is arrested for publishing his ex-girlfriend's mobile number as 24/7 dating service helpline. तो अब देखिए बहुत जने ऐसा मानते हैं कि मैंने ये साइबर लॉ का प्रेजेंटेशन I will act smart, will happen to me. तो इस बंदे ने भी ऐसा ही किया. He was knowing something about cyber laws. तो उसने क्या किया, एक उसकी ही एक्स गर्लफ्रेंड का एक अल्टीमेटली फेक that lady. He has not put the photo of that lady. Just what he has done, he has put a mobile number of that lady and put such a nonsense tag there and on that profile, that 24/7 dating service helpline. And I hope you understand, right? जब ऐसा कोई सोशल मीडिया पे प्रोफाइल आता है तो उसका कितना मिसयूज होता है ना. The girl was extremely in big trouble and that boy was of that opinion कि यहाँ पे मैंने ना उसका फोटो यूज किया है ना उसका नाम यूज किया है, तो डेफिनेटली मेरे सामने कोई केस नहीं होगा. बट यू टू अंडरस्टैंड कि अब देखिए किसी का मोबाइल नंबर जो है that is also for unique identity of that person. I hope you can understand, right? So this mobile number, if you publish in such a bad manner, definitely that is also leading to a case of cyber crime. इसमें भी identity theft का ही section लगा, and accordingly this particular big case is filed in this particular matter. See the next one. This is a very sensitive topic, and I would like to tell all of you to understand it very clearly, because I think you all are mature people, so you can understand this properly. See the next one. Cyber police has arrested one husband for posting porn pictures, adult pictures, to his wife's FB account when they were living separately due to some divorce case, going on, or some dispute going on. When he was arrested by cybercrime cell, and he conveyed only one thing: that sorry, I lost control over my mind due to some bad habits. पर देखिए ये भी आजकल बड़ा न्यूसेंस हो चुका है, राइट? दिस केस इज ऑफ अ मैरिड कपल, और आप लोग सब यंग है, आपको भी समझना पड़ेगा कि यंगस्टर्स जो है, मे बी आपके जो फ्रेंड्स है, मे बी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जेंडर इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो हो सकता है कि इन योर फ्रेंड सर्कल you might be sending some WhatsApp messages, you might be sending some Instagram or this Telegram messages, और उस messages के अंदर there might be some adult content. Now adult content does not only mean adult pictures or adult videos. लॉ ऐसा बोल रहा है कि एडल्ट जोक्स है या एडल्ट कोई टेक्स्ट है, तो वो भी अल्टीमेटली किसमें फॉल होगा? इनटू द पॉर्न पिक्चर्स, इनटू दिस पॉर्न कंटेंट्स और एडल्ट कंटेंट्स. नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी स्प्रेड किया, नाउ सामने वाला अभी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, मे बी कोई गर्ल है, कोई बॉय है, यू नेवर नो व्हाट इज अल्टीमेटली देयर. बट फाइनली ऐसा हो सकता है कि 3-4-6 महीने के बाद आपका और उसका झगड़ा हो गया. इट्स वेरी कॉमन, यू अंडरस्टैंड, इन कॉलेज डेज इट इज वेरी कॉमन कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है आज, हो सकता है कि वही आपका अल्टीमेटली हिंदी मूवी लैंग्वेज वी कैन कॉल इट जानी दुश्मन बन जाए, फॉर एग्जांपल. लाइक दोस काइंड ऑफ एग्जांपल्स आई कैन रिकलेक्ट व्हेन आई एम विद अ यंग क्राउड. You understand, the best friend can become Jani Dushman, and that fellow, maybe a girl or a boy, might go to a cybercrime cell and might file a complaint against you. तो देखिए ये बंदा जो है, ये मुझे 6 महीने से परेशान कर रहा है by sending me the adult jokes, the adult pictures, the adult videos, और ये डेफिनेटली 100% केस फाइल होगा. और ये केस अगर फाइल हुआ आईटी एक्ट के अंदर, साइबर लॉ के अंदर, तो ये केस में ऐसी सेक्शंस अप्लाई होगी कि जिसमें बेल मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. देयर आर मेनी प्रोविजंस इन द आईटी एक्ट जहां पे पोर्नोग्राफी को या एडल्ट कंटेंट को कोई स्प्रेड करता है तो उसको उसके सामने नॉन बेलेबल ऑफेंस का केस रजिस्टर होता है. एंड डेफिनेटली हाई कोर्ट में भी कई बार बेल नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है. देन डेफिनेटली लॉट ऑफ ट्रबल्स विल बी देयर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इश्यूज विल ऑलवेज बी देयर. एंड देयरफॉर बी केयरफुल कि आप ऐसी चीजों से दूर रहो. इट इज एडवाइजेबल कि पॉर्न कंटेंट्स, पॉर्न पिक्चर्स, उसका जो व्यूइंग है वो एक पर्सनल राइट है. आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ ऑन दैट, इट्स अ डिफरेंट लीगल इश्यू. और उसको स्प्रेड करना, उसको पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना इज अ बिग साइबर क्राइम. और आपको शायद ये भी पता है कि जो इंडिया में, वो पूरे वर्ल्ड में जो सामने जो रेप केसेस या जो अब्यूज केसेस बढ़ रहा है, उसका मेजर रीजन यही है
कि ये pornography content widely spread हो रहा है, and there is a law available, definitely somebody can take this recourse and accordingly take strong action against that particular person. See the next one. One famous Gujarati lady singer filed a cyber complaint that her photos are being misused on social media by some unknown person, showing that she is married with that person and having a small kid. obviously ये भी बड़ा डेंजरस इशू है, और ये अगेन इट इज अ केस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। और आपको ये सिंगर के बारे में पता होगा ना कि सिंगिंग सॉन्ग्स ऑन वेरी फेमस cars, luxurious cars like Audi and all. So that Gujarati singer, I'm not going to quote her name, you understand that. But ultimately that lady singer has filed this complaint, और इस केस में क्या हुआ कि उनके फोटोग्राफ जो है वो कोई अननोन पर्सन ने मिसयूज किया, और मिसयूज करके कुछ फोटोग्राफी सॉफ्टवेयर यूज करके अपना फोटोग्राफ उसमें उस लेडी के फोटोग्राफ के साथ अल्टीमेटली मर्ज कर दिया, एंड ट्राइंग टू पोर्ट्रे ऑन दी सोशल मीडिया दैट दे आर मैरिड टू ईच अदर। और बहुत सारे और फोटोग्राफ्स उसने पब्लिश किया जहाँ पे दोनों के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, तो काइंड ऑफ थिंग कि कल ऑनलाइन मैरिज हुआ और आज ऑनलाइन किड्स का फोटो आना शुरू हो गया, एंड दोस काइंड ऑफ नॉनसेंस ही हैज डन। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन, और उसको इंट्रोगेट किया तो पता पड़ा ही सेड कि सर मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा हो गया था। ही वाज अ मैकेनिक काइंड ऑफ बॉय, काइंड ऑफ इलिटरेट बॉय। ही सेड कि मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा हो गया था, एंड माय वाइफ नोज दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस बंगाली लेडी सिंगर। तो मैंने क्या किया, उस लेडी सिंगर का फोटोग्राफ कहीं से उठा लिया, अपना फोटोग्राफ मर्ज किया, और मेरे वाइफ को जेलस करने के लिए मैंने ये काम किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा वाइफ जो है वो तो शी नाउ लाइक इन नॉर्मल मूड। और अभी आप मेरे सामने ये केस किया, एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली ये क्या है। तो अब देखिए, दिस इज द लेवल ऑफ मिसयूज ऑफ फोटोग्राफ्स ऑन द इंटरनेट, एंड देयरफॉर यू ऑल यंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ पे आपका फोटोग्राफ यूज कर रहे हो, कहाँ पे आपका फोटोज अपलोड कर रहे हो ना। यू माइट से कि हम तो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट यूज दोस प्लेटफॉर्म्स, बट you have to have an understanding of this privacy, the settings and lot of other things on a social media platform, and you should be very careful। अब देखिए हमारे पास, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, बट एक रिसेंटली एक केस आया जहाँ पे वेरी हाई प्रोफाइल फैमिली ऑफ गुजरात, वेरी वेरी हाई प्रोफाइल फैमिली ऑफ गुजरात, उनकी डॉटर का एंगेजमेंट कहीं पे फिक्स करने का कुछ बात चल रहा था। एंड जब सामने वाली पार्टी ने उस लेडी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज वेरी क्रूशियल इन टुडेज टाइम। किसी जॉब के लिए आप जाते हैं, या ऐसा कोई कोई फॉरेन की यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाते हैं, या ऐसा कोई मैरिज प्रपोजल है, तो आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया इंटेलिजेंस गैदरिंग के थ्रू लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पता पड़ा कि उस लेडी का फोटोग्राफ और वीडियोज आर अवेलेबल ऑन मोर देन 80 ऑल बोगस नॉनसेंस वेबसाइट्स, जहाँ पे किसी का फोटो होना इज गोइंग टू बी अ बिग रेपुटेशन डैमेज। और जितने भी सामने वाली पार्टीज आ रही थी, दे हैव क्लियरली सेड कि योर गर्ल इज ऑफ वेरी बैड कैरेक्टर, एंड डेफिनेटली वी आर नॉट इंटरेस्टेड in going ahead with this kind of family and this kind of girl. And when they interrogated, then they came to know कि उनको पता ही नहीं है कि उनके फोटोज का कहाँ कहाँ मिसयूज किया जा रहा है, और उसके ऊपर से क्या क्या रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है। आई विल टेल यू द रियल फैक्ट, they have spent around 30 lakh rupees, because out of these 80 platforms 75 प्लेटफॉर्म्स ऐसे थे कि जहाँ पे इट वाज इन डार्क वेब, और जहाँ पे लीगल एजेंसीज का भी एक्सेस पॉसिबल नहीं था, कुछ भी वो नहीं कर पाए। हार्डली 4-5 जगह से हमने लीगल इसको रिन्यू करवाया, बाकी सारा चीज जो है उसमें दे हैड टू स्पेंड मनी, एंड दे आर एबल टू गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रबल। सो बी केयरफुल, ऑल यू गर्ल्स एंड बॉयज, बी केयरफुल कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हो, किसको शेयर कर रहे हो, प्राइवेसी सेटिंग्स आपको पता है कि नहीं पता है। लर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हो सके तो ऐसी चीजों से डेफिनेटली दूर ही रहिए। मैक्सिमम जो है आपका एटलीस्ट आपका जो गर्दन तक का फोटो है, दैट मच यू टू शेयर, नेवर शेयर द फुल फोटोज, एंड देयर बाय यू कैन प्रोटेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन साइबर स्पेस। See the next one. One lady was targeted by ex-boyfriend when he damaged her smartphone and personal laptop. The lady has sent a legal notice for a cyber crime, which he has complied in just 3 days. A very interesting case, also taken care by our firm. इस केस में ऐसा हुआ, which I told you earlier, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और बाद में मैरिज तक बात पहुंच रहा है। इस केस में भी यही हुआ, इट वाज ऑल गोइंग नाइसली, मैरिज कार्ड तक प्रिंट हो गया, but then there was dispute between girl and boy, and accordingly boy was extremely upset कि कार्ड छपने के बाद how can you ultimately ditch like this, and how can you do this kind of decision and all, you understand right। सबने वो सिंघम में सुना होता है मारी सटकली, राइट। तो बहुत जनों को 3-4 बार सिंघम देखने के बाद मारी सटकली बहुत जल्दी हो जाता है। तो दिस बॉय was also facing the same kind of, he stopped a girl somewhere on the road
और उसको ऐसा था कि आई वांटेड टू नो कि तुम्हारा किसके साथ और रिलेशनशिप चल रहा है ऑल। तो उसने उस लेडी का स्मार्टफोन लिया, उसका पर्सनल लैपटॉप लिया, उसको एक्सेस करने का ट्राई किया, दैट वाज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो उसको एक्सेस नहीं कर पाया। सो व्हाट ही हैज डन, उसने उस स्मार्टफोन को और उस पर्सनल लैपटॉप को अल्टीमेटली रोड पे फेंक के तोड़ दिया। सो दैट वे ही हैज फिजिकली डैमेज्ड द डिवाइसेस ऑफ दैट लेडी। एंड नेचुरली जब फिजिकल डैमेज होगा तो डेफिनेटली अंदर का डेटा एंड सॉफ्टवेयर एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी डैमेज। So finally, he told that lady कि तुमसे जो हो सकता है वो कर लो, and I will harass you like this in future, and I know a lot of, I have got great connections in the nearby police and all, and you cannot take any action against me. So finally, via that lady came to our office, and we have served a legal notice to this boy and his family, and we have served a notice to him that you have physically and logically damaged the hardware device as well as the software and the data inside that particular hardware device of our client. अगर आप हमको 3 दिन में रिवर्ट करके इस मैटर को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो वी फाइल अ साइबर क्राइम कंप्लेंट इन साइबर क्राइम सेल, जिसमें मिनिमम 3 से 5 साल तक का जेल हो सकता है आपको। इन एडिशन टू दैट, जितना भी हमको डैमेज हुआ है बोथ इन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंड डेटा, वी आर गोइंग टू फाइल अ सेपरेट केस ऑफ कॉम्पनसेशन इन अ सेपरेट साइबर कोर्ट ऑफ गुजरात। यहाँ पे आपके सामने एक साइबर का सिविल केस भी किया जाएगा, पुलिस कंप्लेंट तो अलग है जिसमें जेल होगा, लेकिन कॉम्पनसेशन के लिए एक अलग केस फाइल किया जाएगा। और अगर आप ये कंप्लाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आफ्टर फाइलिंग ऑल दिस केसेस विल गो टू द मीडिया एंड विल आल्सो टेल द मीडिया कि ये गुजरात का एक पहला केस एकदम फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ केस होने जा रहा है, कि जिसमें अल्टीमेटली किसी का फोन डैमेज करने पर या किसी का हार्डवेयर डैमेज करने पे एक लीगल एक्शन लिया जा रहा है। So you won't believe, within just 3 days, ultimately his father complied with this notice. They have paid around 70,000 rupees for the damage that they have incurred, and accordingly the matter got resolved. And I hope you are able to understand what I'm trying to होने का एक रीजन ये था कि फादर को पता पड़ा कि यहाँ तो कंकोत्री जो छपा वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन आगे कहीं पे मैरिज कार्ड उस लड़के का प्रिंट करना पड़ेगा। सो टू अवॉइड दैट फ्यूचर ट्रबल्स उन्होंने कंप्लायंस कर दिया। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ नॉर्मल tendency of everyone in India and across the globe, that we should not go into the unnecessary legal hassles. So this is the way you have to understand how the IT Act is very much important. Cyber laws are very much important. Similarly, आप भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या कोई कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो या कंपनी में काम करने जाओगे, यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने कोई भी फिजिकल डिवाइसेस को डैमेज किया तो नेचुरली इट इज गोइंग टू बी अ साइबर क्राइम। हाँ, कई बार गलती से आपसे हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ साइबर क्राइम। बट अगर गलती से भी हुआ है और कोई अगर क्लेम करे कि हमको लॉस हुआ है, तो डेफिनेटली वो लॉस के लिए तो केस फाइल कर ही सकते हैं, राइट। उसमें गलती से हुआ है तो जेल शायद नहीं होगा, बट अगर लॉस हुआ है किसी को तो फॉर दैट लॉस you can definitely file a cyber case of compensation. And therefore you should be very, very aware when you are handling somebody else's device, maybe in the college, maybe in the company, or maybe at some other place, right? See the next one, very, very crucial for all engineering students and all IEEE members. One software developer, while working in MNC software company, he copied various data files and source code files, and company filed cybercrime case of data theft and code theft against her. Now, this is a very crucial thing. This all you young students need to understand very, very carefully. You won't believe, out of 700 cases that we have handled in last 16, 17 years of our business, mostly I can say at least 70 to 80% cases are related to some young employee misusing the data, misusing the source code, misusing the client connections or misusing the supplier connections of the company wherein he was working earlier, right? And it's a very big trouble in Gujarat and maybe in entire India. लोग जहाँ पे काम करते हैं फिर उस कंपनी के सामने ही कुछ अल्टीमेटली इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, और वो इट वाज ओल्ड टाइम के जहाँ पे कंपनीज वर टॉलरेटिंग दिस एंड दे वर नॉट interested in filing legal cases. Mostly in last 5-7 years, I have seen that mostly companies are very, very aggressive, and they can understand that when we hire some young engineer and when we groom or when we train that engineer, तो सारा का सारा नॉलेज हमने उसको दिया है। और आपको पता है कि व्हेन यू ज्वाइन सम कंपनी एज एन इंटर्न और एज एन एम्प्लॉय, बहुत सारा लीगल अग्रीमेंट्स आप साइन करते हैं। कहीं आपने सुना होगा नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट आप साइन करते हैं, एनडीए जिसको बोलते हैं, अपॉइंटमेंट अग्रीमेंट आप साइन करते हैं, बहुत सारा और लीगल राइट्स कंपनी का होता है। और तब ऐसा कोई करे कि जिसमें पेन ड्राइव पे वो डेटा कॉपी कर रहा है, या आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि इलीगल एफटीपी के ऊपर डेटा ट्रांसफर किया जाता है, या ये भी देखा जाता है कि कई बार ईमेल पे अपना डेटा ट्रांसफर है। आजकल नया टेक्निक लोग सीख गए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आराम से डेटा को कॉपी कर सकते हैं। सो मेनी टेक्निक्स पीपल यंग यंग एम्प्लॉइज हैव डेवलप्ड, बट ये सारी टेक्निक बहुत कॉमन है और इजीली इसको
इन्वेस्टिगेशन में प्रूव किया जा सकता है। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कंपनीज व्हेन दे फेस दिस काइंड ऑफ ट्रबल, सबसे पहले वो आजकल क्या करते हैं कि जैसे ही वो कंप्लेंट फाइल करेंगे या एफआईआर फाइल करेंगे, तो डेफिनेटली मैंने आपको आगे बताया वैसे आईटी एक्ट में 3 से 5 साल तक का जेल हो सकता है इस केसेस के अंदर। और फिर जितना भी डेटा जो चोरी हुआ है और जितना भी सोर्स कोड चोरी हुआ है या जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी हुआ है, उसका एक वैल्यूएशन करवाया जाता है बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूएशन फर्म। और वैल्यूएशन आपको पता है कि आजकल स्टार्टअप्स के अंदर वैल्यू मिलियंस और बिलियंस में बातें होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन, जितना भी वैल्यूएशन आएगा उतना वो अपना लॉस क्लेम करेंगे। और आपने शायद सुना होगा कि जो स्टार्टअप्स है अगर ऐसा कोई एम्प्लॉयज के सामने केस करते हैं तो वो 2 5 10 करोड़ का केस तो बहुत है और अगर कोई अमेरिकन कंपनी है तो वो तो डॉलर्स में ये सारा केस फाइल करेगी। सो देखो बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये भी देखा गया है कि जब कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज के सामने लीगल एक्शन लेती है तो कंपनी सबसे पहले what they do, they go to leading newspapers, Gujarati, Hindi, and English leading newspapers, and they give a public notice in the newspapers. You understand public notice को you understand Hindi Gujarati में बोलते हैं जाहिर चेतावनी, right? So they give a public notice with a highly colorful photo जो Instagram से या Facebook से वो लोग लेते हैं उस employee का, and with the clear details that this fellow was working with us and he has done some illegal activity and we have filed so and so cases and therefore it is requested to general public कि किसी के इसके साथ कोई डील ना करे और अगर कोई डील करेगा और अगर हमारा डेटा या हमारा कोड मिसयूज होगा तो हम उस पर्सन के सामने भी एक्शन लेंगे जो उस पर्टिकुलर हमारे एक्स एम्प्लॉय के साथ डील कर रहा है। तो पूरा का पूरा किसी यंग एम्प्लॉय, कोई यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो करियर है या कोई भी इंजीनियर, नॉट ओनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इट कुड बी एनी इंजीनियर, उसका जो पूरा करियर है दैट वुड बी एब्सोल्युटली स्पॉइल्ड और उसका पर्सनल लाइफ जो है दैट वुड बी एब्सोल्युटली रूइंड। एंड देयरफॉर बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप जब कहीं पे भी किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि पूरा डेटा उसका है, पूरा कोड उसका है, सारा फाइल्स उसका है। अगर किसी ने मिसयूज किया लीगल एक्शंस कैन बी टेकन, राइट। साथ में यहाँ पे एक और एंगल में ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल यंग पीपल। तो देखिए कई बार ये जो मैंने आपको केस स्टडी समझाया स्पेशली कंपनीज का एम्प्लॉयज के सामने, कई बार कंपनी इसको मिसयूज भी करती है। तो देयरफॉर यू टू बी आल्सो वेरी केयरफुल। क्यों मिसयूज करती है कि सपोज आप अच्छे एम्प्लॉय हो, आप एक अच्छा टीम मेंबर हो और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपका कुछ लीगल एग्रीमेंट है कि आप 2 साल लीगल कमिटमेंट है कि आप 2 साल उस कंपनी के लिए काम करोगे। अभी आपका 2 साल खत्म होने आया है और आपको पता है कि यू आर केपेबल इनफ टू गो टू सम मे बी Amazon और गूगल और मे बी Microsoft or some big company and you are trying to apply there and you might be having some chances to join that company or many reasons are there कि आप इस कंपनी को छोड़ के कहीं और जा रहे हो और मैनेजमेंट को ये पता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उनको छोड़ के अभी 1 2 साल और उनके यहाँ पे टिके रहो और उनके लिए काम करो और डेफिनेटली उनको छोड़ के ना जाओ। तो ऐसे फेक केसेस भी क्रिएट किए जाते हैं और अकॉर्डिंगली यंग एम्प्लॉयज को उसमें ट्रबल किया जाता है। सो बी वेरी स्मार्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑलवेज कंपनीज आर अल्टीमेटली doing all these things in good faith या employees are doing in this good faith, you never know, right? कोई भी गलत कर सकता है, एम्प्लॉय भी गलत कर सकता है, कंपनी भी गलत कर सकती है। बट एज एन एम्प्लॉय यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप गलत साइन कर रहे हो और आपको ये सारा चीज का नॉलेज होना चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ईमेल पे उसका कंफर्मेशन दीजिए कि मैं ये फाइल फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव पे कॉपी कर रहा हूँ। सो एज यू हैव गिवन इट, यू कैन राइट डाउन स्मॉल ईमेल टू द मैनेजमेंट एज यू गिवन मी द परमिशन pen drive. Once in a while you can do this kind of email and accordingly you can create evidences for your safety. The management ने आपको permission दिया है to copy some data and all these things. And therefore, be smart. I cannot explain all these things in this 1.5 hour session, but you have to be smart. You have to be, intellectually, proper, capable enough to understand all these scenarios, and thereby you can protect yourself in this environment. See the next one, very interesting case. बहुत सारे cases हुए हैं अभी. One lady CEO of IT firm has registered a cyber complaint of net banking fraud that some fraudsters in collusion with her account staff were able to get her duplicate SIM card by producing her fake documents with the mobile company. This is interesting to understand. आप सब नेट बैंकिंग यूज करते हैं, बहुत सारा ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, राइट? एवरीवन दिस कोरोना टाइम एवरीवन इज ऑन टोटली ऑन डिजिटल इकोनॉमी। तो आपको ये लाइन 4 5 लाइन पढ़ने से समझ में आना चाहिए कि साइबर फ्रॉड कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए बहुत जने ऐसा बोल नहीं आया फ्रॉड हो गया, विच इज वेरी कॉमन दैट यू ऑल अंडरस्टैंड। उसके अलावा ये एक नया टेक्निक है जो शायद आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़ पेपर्स में, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने भी फाइल किए हैं
तो देखिए कई बार क्या होता है, सैटरडे आफ्टरनून को या इवनिंग को सडनली जो विक्टिम है उसका मोबाइल फोन काम करना बंद कर देता है। और विक्टिम को कई बार ओल्ड एज विक्टिम है या आपके पेरेंट्स है जो टेक्नो सेवी नहीं है, या कोई ओल्ड एज मेंबर है फैमिली में जो टेक्नो सेवी नहीं है, तो उनको लगता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, बहुत सारा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, सो दैट कुड बी द रीजन एंड ऑल। तो मे बी 3-4 घंटे के बाद दे रियलाइज कुछ गड़बड़ है। So then from some other phone, somebody from other family member's phone, that particular victim calls onto the call center of the mobile company and they tell कि मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है नेटवर्क का, यू जस्ट एक्सप्लेन मी। So then the mobile company person might say कि नहीं सर, आपका फोन कैसे काम करेगा, बिकॉज आपने ही तो हमारी कंपनी में आके या आपके ही एम्प्लॉय ने हमारी कंपनी में आके एक एप्लीकेशन दिया है कि आपका ओरिजिनल सिम कार्ड गुम हो गया है या आपका मोबाइल गुम हो गया है या ओरिजिनल सिम कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है और सिम कार्ड चाहिए। तो हमने तो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके डुप्लीकेट सिम कार्ड आपको इश्यू कर दिया है। तो विक्टिम इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या हुआ एग्जैक्टली, तो वाले बोलेंगे नो प्रॉब्लम सर, कल तो संडे है, आप मंडे को आइए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे एंड विल डेफिनेटली सपोर्ट। तो विक्टिम इज नॉट वरीड कि चलो ठीक है, फोन बंद है, नो प्रॉब्लम, आई गो ऑन मंडे। मंडे जब विक्टिम उस मोबाइल कंपनी के ऑफिस में जाता है तो अल्टीमेटली वही प्रोसीजर वो रिपीट करता है, अपना एक एप्लीकेशन देता है कि नहीं भाई, मैंने भी डुप्लीकेट सिम कार्ड का एप्लीकेशन दिया नहीं है एंड यू प्लीज गिव मी माय सिम कार्ड बैक, दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू मेक। और कंपनी जो है एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके उसको एक नया वो नया सिम कार्ड इंसर्ट करता है तो मोबाइल है। लेकिन जैसे ही मोबाइल शुरू होगा ही स्टार्ट्स रिसीविंग लॉट ऑफ मैसेजेस। ये अल्टीमेटली आपके अकाउंट से 2 लाख चला गया, आपके अकाउंट से 5 लाख चला गया, इन दिस केस अराउंड 1 करोड़ 2 लाख रुपीज का फ्रॉड हुआ था, बिकॉज ये कंपनी का अकाउंट था, नॉट एन इंडिविजुअल्स अकाउंट। और अकॉर्डिंगली ह्यूज ट्रांजेक्शन अराउंड 27-28 ट्रांजेक्शन ऑफ 2 लाख रुपीज ईच, और अकॉर्डिंगली ह्यूज फ्रॉड हैपेंड एंड लेडी वाज द विक्टिम, लेडी वाज इन अ बिग ट्रॉमा कि हुआ क्या। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। अब देखिए कई बार हमको लगता है कि मोबाइल में से ओटीपी चोरी हो गया, या किसी ने ऐसा ऐप डाल दिया या ट्रोजन डाल दिया कि जो ओटीपी कॉपी करके चला गया एंड देन साइबर फ्रॉड है। अब देखिए इस केस में तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा सिम कार्ड जो है वो ही हैकर उड़ा के लेके चला गया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अटैक कि आपका सिम कार्ड ही बंद हो गया और आपका डुप्लीकेट सिम कार्ड जो है हैकर के पास चला गया और बाद में उसने नेट बैंकिंग पे अटैक किया। और सबको पता है नेट बैंकिंग जो है या कोई भी ऑनलाइन सिस्टम है, इट्स always attacks are possible and people can break into the system। लेकिन सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी था वो था कि आपके मोबाइल डिवाइस पे आपका ओटीपी आएगा, लेकिन मोबाइल डिवाइस ही काम नहीं कर रहा है बिकॉज आपका सिम कार्ड जो है वो किसी और के पास चला गया, और आपका सिम कार्ड जिसके पास है उसके मोबाइल में ओटीपी आएगा, उसने ओटीपी को मिसयूज किया, आराम से बहुत सारे फ्रॉड्स किए। तो दिस काइंड ऑफ अटैक्स आर हैपनिंग एंड देयरफॉर इसमें लीगल एक्शंस ले सकते हैं, जो मैंने आपको आगे समझाया वैसे ही लीगल एक्शंस ले सकते हैं, जो हमने लिया भी है फाइटिंग इन दिस केस। बट अब देखिए कई बार लीगल एक्शन के साथ साथ उनको इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी समझने हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट। और अब देखिए आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली कि टेक्नोलॉजी जो है ये जितना आगे बढ़ेगा उतना सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ेगा, राइट। मैं 2003 से व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय आईटी, सिंस 2003 व्हेन आई फिनिश्ड माय आईटी, I was hoping that next 5 years security will be definitely booming, and next five again after 5 years I was hoping that next 5 years security will be excellent and nobody the cyber crime will be reduced. I can tell you after 16-17 years of my experience I'm very much clear that security जो है वो कभी perfect होने वाला नहीं है and always there will be gaps. The only solution is to become smart, जिसको हम गुजराती हिंदी में क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ ગુજરાતીમાં કહીએ ને વાણિયા બુદ્ધિ આપણે જે અપ્લાય કરવી પડે, to apply our ગુજરાતી બુદ્ધિ or ગુજરાતી mindset so that we can protect our money and we can protect our interest in the cyberspace. This is the simplest idea which you can share with your friends and all old age people and everyone, those who are using online payment system. Simplest idea क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिसमें आपका नेट बैंकिंग ऑपरेशन चल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट ऑपरेशन चल रहा है, उसी बैंक के अंदर आपको एक दूसरा अकाउंट भी रखना चाहिए। और ये आप कर सकते हैं, राइट। आप मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स को ऐड करके किसी का नाम आगे डाल के किसी का नाम पीछे डाल के आप दूसरा अकाउंट भी वहां पे खोल सकते हैं। इट्स वेरी इजीली पॉसिबल, बैंक्स आर हैविंग दिस प्रोविजन। और आपका जो 2 अकाउंट है, तो आपका जो नेट बैंकिंग वाला अकाउंट है उसमें आपके पास मिनिमम बैलेंस ही होना चाहिए, और आपका जो नॉन नेट बैंकिंग अकाउंट है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, जहां पे आपने कोई ऑनलाइन बैंकिंग का फैसिलिटी लिया नहीं है, कोई आपने फॉर्म फिलअप करके बोला नहीं है कि हमको ऑनलाइन बैंकिंग चाहिए,
आपने एक एप्लीकेशन कर लिख दिया है कि हमको इस अकाउंट में ऑनलाइन बैंकिंग नहीं चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं चाहिए, दैट काइंड ऑफ आइसोलेटेड अकाउंट यू टू यूज। और जब जब आपको ट्रांजेक्शन करना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक में जाके एक सिंपल चेक लिख सकते हैं, लेट्स से आपको 1 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन करना है, तो आप क्या करोगे, जो नॉन कनेक्टेड अकाउंट है उसका एक 1 लाख रुपीज का चेक लिख के रुपीज आप ट्रांसफर करेंगे, 1 मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज सेमी बैंक में आपका, सेमी ब्रांच में आपका अकाउंट है। और जैसे ही आपको 1 लाख रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट दिख रहा है नेट बैंकिंग अकाउंट में, वहां से आप ट्रांजेक्शन कर लीजिए, बड़ा वाला ट्रांजेक्शन आपका हो गया, और फाइनली आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस अभी अवेलेबल है। तो इन द वर्स्ट केस अगर फ्रॉड भी हुआ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कितना पैसा आपका जाएगा, 2,000 5,000 रुपये जाएगा, जो आपने मिनिमम बैलेंस रखा है। जो आपका बिगर फंड्स है वो तो कहाँ पे आपने सिक्योरली स्टोर पे किया है, इनटू द नॉन कनेक्टेड अकाउंट। And that is the best Gujarati way. This is the Jugadu way in your language. I can say this is the best way you can save your money. Otherwise, जब इस केस में मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो मैंने केस आपको समझाया, इस केस में हमने कोर्ट में केस फाइल किया है, फॉर यू अंडरस्टैंड जो लीगल सिस्टम है वो अपने तरीके से ही काम करता है, राइट। यू कांट से कि मैं साइबर स्पेस में 1 सेकंड में कनेक्ट हो रहा हूँ, लॉ का केस भी इतना ही फास्ट, इतना ही स्पीडी इसका रिजल्ट चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपने एक अच्छा डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, राइट, वेरी कॉमन डायलॉग फ्रॉम द बॉलीवुड, और अभी नया भी चल रहा है, अपील पे अपील, राइट। कई बार लोग जीत जाते हैं तो उसके आगे अपील होता है, फिर भी जीत जाते हैं, फिर भी अपील होता है। तो तारीख पे तारीख, अपील पे अपील तो होने वाला ही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट मनी रिकवर्ड सो फास्ट, therefore इट इज एडवाइजेबल कि पैसा जो है आपका और आपके पेरेंट्स का या जो भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स है, प्लीज गाइड ऑल ऑफ देम टू यूज दिस टेक्निक, एंड दैट इज द बेस्ट वे कि आप टेक्नोलॉजी का भी परफेक्ट यूज कर पाओगे और सिक्योरिटी भी आपका बेस्ट रहेगा to remain away from these cyber attacks, right? I hope you all are able to relate with me, and I hope this is helpful. The next one. One ex-security auditor of the IT security firm is arrested for carrying out ethical hacking practices on his client server without any legal permission. This is very interesting. अब देखिए, शायद मेरे प्रोफाइल में it was introduced that I was also an ethical hacker in my college days. Now I'm not more into that. I'm mainly into the cyber laws and some broader level of security management consulting. तो अब देखिए, ethical hacker जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था उसका, and then I got a title of certified ethical hacker. ये क्या होता है that you don't understand कि ethical और legal के बीच में क्या difference है. And people feel that ethical hacking का मतलब क्या, कि मैं ethics का सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। तो आपको थोड़ा समझना है इस केस में भी, आपको थोड़ा समझना है कि एथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है। कि अल्टीमेटली आप कुछ बोनाफाइड कुछ लेजिटिमेट पर्पस के लिए कोई सिस्टम में जाके उसका जो वीकनेसेस है, उसका जो वल्नरेबिलिटीज है, आप सब आई थिंक आईटी का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, दिस वर्ड्स आर वेरी कॉमन, वल्नरेबिलिटीज एंड वीकनेसेस, राइट। तो उसको वीकनेसेस को आप फाइंड करते हैं, और फाइंड करके जो कंसर्न पर्सन है उसको रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और वो जब आपको परमिशन देगा आप उस वीकनेसेस को रिजॉल्व करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ एथिकल हैकिंग प्रैक्टिस। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि आपके पास परमिशन होना चाहिए। अगर आपके पास परमिशन नहीं है और आप किसी भी साइट पे घुस गए, किसी भी ऐप के अंदर जाके घुस गए, किसी के भी नेटवर्क में घुस गए, और आपको लगा कि लेट मी ट्राई माई एथिकल हैकिंग स्किल्स एंड लेट मी शो कि आई एम सो ग्रेट एथिकल हैकर, और आपने कुछ हैक किया और अकॉर्डिंगली आपने अल्टीमेटली एक रिपोर्ट जनरेट किया, और बिना परमिशन रिपोर्ट जनरेट करके आपने सामने वाली पार्टी को भेज दिया, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको सामने से कुछ मोमेंटो मिलेगा, या कुछ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, या कुछ आपको एक प्राइज मनी मिलेगा। हो सकता है कि यही रिपोर्ट लेके वो जो पर्सन है, जो साइट ओनर है, ऐप ओनर है, वो पुलिस स्टेशन जा सकता है, और अकॉर्डिंगली एक आपके सामने साइबर क्राइम का कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि दिस पर्सन has entered into my app, into my website, into my network without the permission, illegal access to my network, illegal hacking into my network, and accordingly please take legal action against that particular person, right? So I hope you are able to understand. कहीं पे भी अगर आप या मे बी एक्चुअली आप बहुत सारा कोर्सेज चल रहा है ऑनलाइन, बी अश्योर्ड कि अगर आप इस चीज में जा रहे हो तो बी केयरफुल दैट यू टेक द परमिशन ऑफ द पर्सन जिसके सिस्टम में आप एथिकल हैकिंग ट्राई कर रहे हो। अदरवाइज बड़े लीगल इश्यूज होते हैं, यंग लोग समझ नहीं पाते क्या हो गया, और डेफिनेटली somebody may spoil entire career into this particular thing. See the next one. One SEO executive of digital marketing firm is facing a cybercrime trial for carrying out his personal project using company IT facilities during his job hours. तो अब देखिए, ये बड़ा
प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है आईटी इंडस्ट्री में या पूरा का पूरा ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, नॉट ओनली आईटी बट ऑल टेक्नोलॉजी आर कवर्ड। अभी वर्क फ्रॉम होम में तो बहुत सारा चल रहा है। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई कंपनी के लिए काम कर रहा है तो हो सकता है कि कोई साथ साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहा है। तो जब फ्रीलांसिंग कर रहा है तो हो सकता है कि आपने कोई एग्रीमेंट्स पढ़े नहीं है जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो, तो नेचुरली कंपनी जो है ये फ्रीलांसिंग अलाउ नहीं करती है लीगली। इफ समबडी इज डूइंग फ्रीलांसिंग तो डेफिनेटली इट्स अ वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट विद द साइंड विद द कंपनी। और अभी देखो कई जने घर पे फ्रीलांसिंग करते हैं, मे बी संडेज को करते हैं, बट स्टिल दैट कुड क्रिएट सम लीगल ट्रबल। बट ठीक है, वो कोई देखने नहीं आता है, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और इस केस में क्या हुआ, जो बहुत जने आजकल सीख गए कि कंपनी में बैठे बैठे दिस फेलो was carrying out, was doing his personal projects using all company's IT facilities. I hope you understand, right? It's a very dangerous thing. मतलब कोई देख नहीं रहा है, किसी का ध्यान नहीं है, तो 8 घंटे का कंपनी का काम है, उसमें से 2-3 घंटे अपना पर्सनल प्रोजेक्ट्स कर रहा है। और कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स है वो किसका यूज कर रहा है, एसईओ टूल्स है, वो कंपनी का यूज कर रहा है। तो जब कंपनी ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, दे रियलाइज एंड दे फाइल साइबर क्राइम केस, और इस केस का तो कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है। सो बी केयरफुल, राइट? आपको लगता है कि मैं ये लैपटॉप कंपनी का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, कंपनी ने मुझे अलाउ किया है, ऑथोराइज किया है, और ऑथोराइज किसके लिए किया है? फॉर कैरिंग आउट द वर्क ऑफ कंपनी, not carry personal work. I hope you are able to understand. तो 3 घंटे पर्सनल काम किया है, that 2 to 3 hours एक्सेस और अनऑथोराइज्ड hours का एक्सेस, डेटा, everything is unauthorized, and that also fall into the category of cyber crime, right? So be very very careful about this kind of activity when you join some organization. See the next one. One ex BDM. BDM is called Business Development Manager, some kind of MBA fellow, is served with a cybercrime legal notice for keeping his old company title in his LinkedIn profile and diverting leads to his own company. तो देखिए ये भी आजकल बड़ा कॉमन है कि कंपनी में 2-3 साल काम करने के बाद सेल्स वाले या आईटी प्रोफेशनल जो है, दे अल्टीमेटली स्टार्ट देयर ओन कंपनी। दिस एक्चुअली हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस। So what he was doing, so he left the company and he started similar kind of business, which is very common in scenario. And as agreement, आपने भी सुना होगा, as per the non-disclosure agreement, non-disclosure agreement, बहुत सारा चीजें रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये बंदे ने क्या किया कि जो लिंक्डइन प्रोफाइल था अपना, उसके ऊपर अपना जो ओल्ड टाइटल था, सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन दिस कंपनी, वो टाइटल वही का वही रखा और अकॉर्डिंगली अपना कंपनी शुरू कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड क्यों टाइटल वो रखा, ताकि वो टाइटल देख के उसको लीड्स मिलेगा, बिकॉज ही इज सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, और जो भी लीड्स आ रहा था वो अपने पर्सनल कंपनी के लिए डाइवर्ट कर रहा था। सो यू टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली इसमें क्या साइबर क्राइम हुआ। तो सबसे पहला साइबर क्राइम ये हुआ कि कंपनी का जो टाइटल है, जो ओल्ड टाइटल, दैट इट इज यूजिंग even after leaving the job, then that is also called a fake identity that he is giving to जनरल पब्लिक, और उसके लिए भी साइबर क्राइम का केस फाइल हुआ, केस फाइल हो सकता है, और अकॉर्डिंगली 3 से 5 साल तक का जेल हो सकता है। तो आपको भी ध्यान रखना है, व्हेन यू आर वर्किंग इन सम कंपनी एंड अकॉर्डिंगली व्हेन यू लीव दैट कंपनी, चेंज योर टाइटल इमीडिएटली, एंड व्हेन यू गो टू न्यू कंपनी, कीप द न्यू टाइटल अकॉर्डिंगली। अदरवाइज इफ यू कीप द ओल्ड टाइटल, somebody might file a case against you, may send you a legal notice that you are not authorized to use this title anymore. You have to be very very careful in this particular thing, right? Similarly, कई बार ऐसा होता है कि जब young engineers, when they join some company, and accordingly when they learn something, and after 1 year 2 year they start their own company, and then they start approaching the old clients, the clients of the old company, और उस क्लाइंट्स को मेल करते हैं, उस क्लाइंट्स के साथ स्काइप कॉल करते हैं, उसको व्हाट्सएप मैसेज देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मोस्टली जब आप कोई अच्छी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो एग्रीमेंट वो लोग साइन करवाते हैं, ज्वाइनिंग के टाइम पे भी होता है, एग्जिट के टाइम पे भी होता है। अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो ये सारा चीज जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा, तो समझ में आएगा ठीक से, दिस कैन हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग योर स्टार्टअप इंटरेस्ट। तो ये सारे एग्रीमेंट में एक क्लियर रिस्ट्रिक्शन का क्लॉज होता है, फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स you are not allowed to contact the clients, you're not allowed to contact the employees, you're not allowed to contact the suppliers and lot of associates. If you do that, तो डेफिनेटली क्रिमिनल केस तो फाइल होगा ही होगा, जिसमें पुलिस कंप्लेंट होगा, जेल का प्रोविजन होगा। साथ साथ में इफ यू डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी तो एक सिविल केस भी फाइल होगा, और लॉसेस के रिकवरी के लिए भी एक पर्टिकुलर केस फाइल होगा, राइट? सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू जॉइन सम कंपनी एंड इंटर्न। See the next one. One trainee of a reputed CA firm
चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, ये आप समझते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट firm is fired for illegally downloading pirated softwares using firm's network for his personal use. Firm had to undergo software compliance audit by the software vendor because of this incident. ये आपको भी ध्यान रखना है जब आप एज अ ट्रेनी एज एन एम्प्लॉय कहीं पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल कि आप कोई ऐसा चीज डाउनलोड ना कर लो जो पायरेटेड है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस फॉर्म में आप काम कर रहे हो, उसके सामने तो कोई ना कोई एक्शन लिया ही जाएगा। लेकिन वो कंपनी या फॉर्म सबसे पहले क्या करेगी, जिसने गलत काम किया है उसको पहले फायर करेगी, और अकॉर्डिंगली बहुत सारा डिस्प्यूट माइट हैपन, सो देयरफॉर बी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। So with this, I have completed the cases, and I hope you are able to understand. You should be careful of time. Yeah, so we have sufficient time. So now I'll discuss some of the provisions of IT Act. Mostly मैंने जो cases आपको convey किया वही सारा provisions है, right? So legal provision समझना engineering students के लिए इतना easy नहीं होता है. So therefore I have started with some practical cases so you can understand. So Indian cyber law is a generic name. It is a very famous popular name. But legal name क्या है? So you can see on the screen. It is called IT Act 2000. IT आप सब समझते हैं, IT आप पढ़ते हैं, Information Technology. So Information Technology का Act जो ओरिजिनली पास हुआ था इन द ईयर 2000, मतलब 20-21 साल से भी है आईटी एक्ट, और उसमें चेंजेस आया था बहुत सारा, जो 2008 में आया था। उसको बोलते हैं आईटी अमेंडमेंट एक्ट। आईटी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस और काइंड ऑफ अपडेट एक्ट ऑफ 2008, राइट? सो दैट इज द ब्रॉड थिंग। This is section 43. Not going in detail, mostly I have covered in the cases. This section 43 allows anyone, मतलब आप भी केस कर सकते हैं इसके अंदर, या कोई भी विक्टिम जो है वो केस कर सकता है फॉर द कॉम्पनसेशन फॉर अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड किया और किसी के साथ फाइनेंशियल लॉस हुआ किसी को, या किसी ने डेटा चोरी कर लिया, किसी ने कोड चोरी कर लिया फॉर एग्जांपल, या किसी ने फॉर एग्जांपल फिजिकल डिवाइस डैमेज कर दिया जो हमने आगे बात किया, किसी ने वायरस भेज दिया किसी के मशीन में, या फॉर एग्जांपल वायरस भेज के अटैक किया फॉर एग्जांपल, या आजकल नया हो रहा है कि किसी ने ऑनलाइन रेपुटेशन अटैक कर दिया, ऑनलाइन कुछ अनाप शनाप लिख दिया। तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स कवर्ड इन दिस सेक्शन, देयर आर मेनी प्रोविजंस। आई एम नॉट गोइंग टू, आई होप यू कैन गो थ्रू जस्टिस, एंड ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। यू कैन डाउन सर्च सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट एंड यू कैन हैव दिस ऑल provisions available. So these all are available, on the internet. So I'm not going to discuss in detail, but these are the sections जिसके अंदर बहुत सारा लीगल इश्यूज हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यू कैन सी दैट सब सेक्शन आई, कि किसी ने डिस्ट्रॉय किया, डिलीट किया या ऑल्टर किया, राइट? ये आगे केस में कवर नहीं हुआ है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और अभी आप बिना परमिशन कोई डेटा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या कोई डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो ये भी अल्टीमेटली साइबर क्राइम हो जाएगा। सब सेक्शन आई, यू कैन सी दैट पॉइंट नंबर आई। तो ये केस में मैंने कवर नहीं किया, बट यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो बिना परमिशन डिलीट करना, डिस्ट्रॉय करना है, डेटा को ऑल्टर करना इज आल्सो अ साइबर क्राइम एज पर द साइबर लॉ, राइट? एक और पॉइंट है, यू कैन सी दैट पॉइंट नंबर एफ ऑन द स्क्रीन। यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट एफ, डिनाइज और कॉजेज द डिनायल ऑफ एक्सेस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो थोड़ा टेक्निकल साइबर सिक्योरिटी जानते हैं उन्होंने वर्ड सुना होगा, डॉज अटैक, कहीं ना कहीं आपने वर्ड सुना होगा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं, डॉज अटैक। तो किसी ने अगर डॉज अटैक किया किसी साइट के ऊपर, अभी डॉज का नया वर्जन भी चल रहा है, नया तो नहीं है बट वेरी काइंड ऑफ अपडेटेड वर्जन, पुराना हो गया वो भी, डी डॉज अटैक बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो किसी ने डॉज अटैक किया या डी डॉज अटैक किया तो ये सेक्शन में केस फाइल होता है। उसके अलावा डिनायल का वर्ड आप समझते हैं, डिनायल का मतलब क्या होता है? किसी को ना बोलना, किसी को डिनाई करना, ऑथोराइज पर्सन को ना बोलना। तो ये भी आपको समझना है। कई बार ऐसा होता है, सपोज आप ऑथोराइज्ड है कोई सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, जैसे आप समझिए, सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज शेयर मार्केट का कोई ऑनलाइन ऐप है और आप ऑथोराइज पर्सन और आपको शेयर मार्केट का ऐप एक्सेस करना है क्योंकि आपको शेयर बेचना है फॉर एग्जांपल, और शेयर बेच के आपको आपका प्रॉफिट बुक करना है। तो ये आप जब करने जा रहे हो प्रॉफिट बुक करने, शेयर बेचने, तो आप ऑथोराइज पर्सन हो, आपके पास पासवर्ड वगैरह सब सही है, ओटीपी आपका सही आ रहा है, तो भी आपको एक्सेस डिनाई किया जा रहा है। So that is called denial of access. I hope you understand. Authorized person not given access is called denial of access. तो अगर कोई ऐसा डिनाइल किया जा रहा है तो ये सबसेक्शन एफ के अंदर भी केस फाइल कर सकते हैं। This is very interesting. Section 43 capital A. Very briefly I will discuss. Body corporate's liability for compensation. तो body corporate का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी, कोई जो कुछ भी काम कर रहा है उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, जो बिजनेस कर रहा है। तो इसका मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज आपने आपका बहुत सारा डेटा
आपका पर्सनल डेटा फेसबुक को दिया है, राइट, या इंस्टाग्राम को दिया है, या गूगल को दिया है, या मे बी FedEx को दिया है, या मे बी एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज डूइंग बिजनेस, ई कॉमर्स कंपनी को दिया है, तो एज पर दिस लॉ, एज पर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है कलम, प्रोविजन, राइट, so as per this section, it is mandatory, it is compulsory for all the companies to secure your data as per the rules and regulations of the IT law of India. और अगर ऐसा प्रूव हो जाए, डेटा ब्रीच आपने वर्ड सुना होता है, राइट, अगर ऐसा प्रूव हो जाए कि आपका डेटा जो है ई कॉमर्स कंपनी के अंदर से या फेसबुक में से या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी ऑनलाइन कंपनी के प्लेटफॉर्म में से लीक हुआ है, और उसका रीजन ये है कि उन्होंने सिक्योरिटी जो रखना चाहिए था एज पर दी IT लॉ वो नहीं रखा है, और वो डेटा ब्रीच हुआ और उसके कारण आपको कोई लॉस हुआ, तो आप उस मोबाइल कंपनी के सामने, उस सोशल मीडिया कंपनी के सामने, उस ई कॉमर्स कंपनी के सामने, उस मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी के सामने, कोई भी कंपनी है उसके सामने आप एज अ विक्टिम कॉम्पनसेशन का केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ बिकॉज मेरा डेटा आपके यहाँ से लीक हुआ था, और वो क्यों लीक हुआ था, बिकॉज आपने सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं रखा था एज पर द लॉ, एंड देयरफॉर दिस इज द लीगल राइट गिवन टू ऑल विक्टिम्स इन इंडिया, तो जिसमें जाके आप अल्टीमेटली केस फाइल कर सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन सी द टाइटल, बड़ा फनी क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो मैंने ये एज अ स्लाइड में ही कवर कर दिया है। The title, attempting cyber attacks such as password game। अभी ये बड़ा आजकल न्यूसेंस चल रहा है, तो लोग घर पे बैठे हैं तो टाइम पास के लिए कुछ भी करते हैं, तो लाओ क्या करना है, तो सबसे जो इजी टेक्निक है हैकिंग का, सबको पता है, क्या बोलते हैं उसको, पासवर्ड गेसिंग, राइट। तो चलो लेट अस ट्राई टू गेस द पासवर्ड ऑफ दिस पर्सन, लेट अस ट्राई टू गेस द पासवर्ड ऑफ दिस पर्सन, ऐसे कुछ ना कुछ लोग ट्राई करते रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि गेस करने में क्या जाता है। तो लॉ क्या बोल रहा है, यू कैन सी द सेकंड पैरा ऑफ द स्क्रीन, एज पर सेक्शन 84 कैपिटल सी, provision 84 capital C of Indian IT Act 2000, person may be held responsible for attempting a cyber crime such as password guessing, and that is also illegal, and for which liability may come for jail, imprisonment of 1.5 years or 2.5 lakh rupees of fine, or with the both. I hope you understand, right? मतलब अगर पासवर्ड ब्रेक हो गया तो वो 3 से 5 साल तक का जेल हो ही सकता है, वो तो है ही है, राइट। लेकिन पासवर्ड ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ कोई गैस कर रहा है, कोई ट्राई कर रहा है, और अगर एविडेंस क्रिएट हो गया, बिकॉज होता ही है, एविडेंस तो क्रिएट होता ही है, और अगर कोई गैस कर रहा है और अगर कोर्ट में प्रूव हो गया कि दिस गैसिंग वाज डन विद अ मैलाफाइड इंटेंशन, विद इलीगल इंटेंशन, तो डेफिनेटली इसमें केस फाइल हो सकता है। तो बी केयरफुल, राइट। ये टाइम पास गेम्स खेलना जो है वो बंद कर दीजिए, एंड वी शुड नेवर अटेम्प्ट टू ट्राई ऑल दिस पासवर्ड, राइट। द नेक्स्ट वन, हेल्पिंग समवन इन साइबर अटैक्स। अब देखिए आजकल ये भी चल रहा है, सबने सुना होता है डार्क वेब, डीप वेब, दीज आर ऑल डेंजरस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे बहुत सारा न्यूसेंस एक्टिविटीज चलता रहता है। तो अब देखिए हो सकता है कि आपने कोई एथिकल हैकिंग का कोर्स किया और बाद में आपका कोई फ्रेंड जो है वो आपको अप्रोच कर रहा है कि मुझे कुछ ट्राई करना है, तो यू प्लीज गिव मी सम टिप्स एंड गिव मी सम गाइडेंस एंड गिव मी सम टूल्स एंड ऑल, एंड यू इन अ फ्रेंडली मैनर सपोर्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, और बाद में वो पर्सन साइबर अटैक कर रहा है, और हो सकता है कि उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो पकड़ा जा रहा है, और वो पकड़ा जाएगा, तो सबसे पहला स्टेटमेंट वो क्या बोलेगा, उसका जो उसके जो लीगल एडवाइजर है उसको क्या बोलेंगे, तो यू गिव अ फर्स्ट स्टेटमेंट इन द पुलिस या इन द कोर्ट, नॉन टेक्निकल पर्सन, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो मेरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेंड है जो पढ़ाई कर रहा है, उसने मुझे ये सारे टूल्स दिए हैं और उसने मुझे गाइडेंस दिया है, और मैंने उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये अटैक किया है, तो आई एम नॉट नोइंग समबडी, आई एम नॉट नोइंग एनीथिंग, एंड देयरफॉर ही हैज हेल्प्ड मी टू मेक दिस अटैक। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। टेल कि सर उसके सामने भी कंप्लेंट कीजिए, बिकॉज ये करने से उसका जो लीगल लायबिलिटी है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा बहुत सारा उसका लायबिलिटी, डेफिनेटली लायबिलिटी जाएगा नहीं, बट ही विल गेट लॉट ऑफ फेवर, क्योंकि ही इज नॉट द एक्चुअल पर्सन इज समबडी एल्स। तो आपने गुड फेथ में हेल्प किया, तो चलो मैं कुछ टूल देता हूँ, कुछ टिप्स देता हूँ, लेकिन दिस में लीड टू अ बिग ट्रबल। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 3 साल तक का जेल हो सकता है, 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है, and therefore this is a very risky thing, right? So किसी को भी हेल्प कर रहे हैं, बी केयरफुल कि वो क्या कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में, ऐसे ही यू आर माय जिगरी फ्रेंड एंड आई कैन हेल्प यू लाइक एनीथिंग, डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस विल गिव लॉट ऑफ ट्रबल। नाउ द important part, the third part of our session, and I think with this most things are covered,
preventive techno-legal solutions. Now, this is applicable to companies mainly. But why I am covering this on this note, on this point, कि कंपनी ज्वाइन करें, तो आपको भी पता होना चाहिए कि कंपनीज अपने आप को कैसे प्रिवेंट करती है. दैट इज वन थिंग, राइट. दूसरा कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि 2-5 साल के बाद आप अपना खुद का कंपनी शुरू करें, खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करें, या खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें, मे बी इन द IT सेक्टर और मे बी इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, बीइंग इंजीनियर. तो अल्टीमेटली आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप अपने इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कैसे एज एन एम्प्लॉय आप कोई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे कोई कंपनी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे. दीज आर द 5 ब्रॉड थिंग्स which I want like to focus. Broadly I put it not in details, but just I like to explain this. See, the first one is called techno-legal agreements. तो मैंने आई थिंक आगे इन सम केस डिस्कशन मैंने आपको बताया. तो व्हेन यू ज्वाइन सम कंपनी, तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको देगी. पहले तो ऑफर लेटर होता है, आपने वर्ड सुना होता है शायद, एंड देन देयर इज अपॉइंटमेंट लेटर. और अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ एक एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट होता है, जो टेक्नो लीगल अग्रीमेंट होता है कि आप अल्टीमेटली एम्प्लॉय हो और आप बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो एक टेक्नो लीगल एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट 10-15 पेज का अग्रीमेंट होता है. आपको पढ़ना चाहिए आपके अवेयरनेस के लिए. ये भी हो सकता है आपको सारा चीज समझ में ना आए, बट ब्रॉडली यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या आपके लीगल राइट्स है, क्या उनके लीगल राइट्स है, एंड दैट इज द फर्स्ट मेजर अग्रीमेंट. दूसरा जो मैंने आपको शायद आगे बताया था इज कॉल्ड नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट एंड नॉन पोचिंग अग्रीमेंट. NDA बोलते हैं, कई बार NPA बोलते हैं. तो दैट इज सेकंड थिंग. तीसरा आपको ये भी ध्यान रखना है, छोड़ के जाते हैं वो लोग एग्जिट के अग्रीमेंट साइन करवाते हैं. एग्जिट का लीगल अग्रीमेंट, एग्जिट का NDA, एग्जिट, यू अंडरस्टैंड राइट, व्हेन यू लीव द कंपनी इट्स कॉल्ड एग्जिट. तो ये सारा सारा चीजें टेक्नोलॉजिकल अग्रीमेंट जो है, जिसके थ्रू आपका भी राइट प्रोटेक्ट होगा. आई एम नॉट सेइंग कि ये कंपनी सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है, एम्प्लॉय का भी राइट प्रोटेक्ट होगा. बिकॉज हो सकता है कि आप कोई फॉरेन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कोई फॉरेन क्लाइंट ने केस कर दिया और आपकी कंपनी पे केस किया, आप उस टीम में से आपके ऊपर भी केस कर दिया, तो बहुत सारा लीगल इश्यूज हो सकता है IT वर्ल्ड में. तो देयरफॉर आपके प्रोटेक्शन के लिए, कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए, दिस आर ऑल अग्रीमेंट, दिस शुड बी डन वेरी प्रॉपरली. और ये साइन करने के साथ साथ इसको लेटर एंड स्पिरिट में, इसको एक्चुअली आपको कंप्लाई करना चाहिए, इसको एक्चुअली आपको बाय हार्ट आपको इसको फॉलो करना चाहिए. तब जाके आप भी सेफ रहेंगे और कंपनी भी सेफ रहेगी. सेकंड देखिए, टेक्नो लीगल पॉलिसीज. तो ये बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा कि जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी का एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होता है, राइट. जनरल जिसको साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, तो वो आपको फॉलो करना है. दूसरा, कंपनी का सोशल मीडिया पॉलिसी होता है, ये भी आपने सुना होगा, लीगल पॉलिसी. तीसरा, साइबर लॉ का एक पॉलिसी होता है. चौथा, एक HR पॉलिसी होता है. तो ये सारा चीजें ब्रॉडली आपको समझ में आना चाहिए और ये सारा फॉलो करके इसको अप्लाई करना चाहिए एज अ गुड पर्टिकुलर टीम मेंबर. थर्ड जो होता है टेक्नो लीगल इंडक्शन. जैसे आपका ये मैंने आज ट्रेनिंग वगैरह हमारा चल रहा है, तो यही चीज कॉर्पोरेट में भी होता है जब एम्प्लॉइज ज्वाइन होते हैं तो उनको भी अवेयरनेस दिया जाता है, इंडक्शन दिया जाता है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है. दैट इज थर्ड थिंग. फोर्थ वन इज टेक्नो लीगल इंटीमेशन. इंटीमेशन का मतलब होता है सारा चीजें 1 2 3 करने के बाद राइटिंग में एम्प्लॉय को एज अ लॉ फर्म, जैसे सारा लॉ फर्म है, तो लॉ फर्म जो है कंपनी का, वो राइटिंग में एक लीगल इंटीमेशन देता है कि आपको ये सारा चीजें, एग्रीमेंट, पॉलिसी, इंडक्शन वगैरह समझाया गया है और आपने साइन वगैरह किया है. तो ये आपको दिया जा रहा है कि आपको ये सब चीजें फॉलो करना है फॉर योर सेफ्टी, फॉर द कंपनी सेफ्टी. एंड दैट इज द फोर्थ थिंग. इन द लास्ट वन भी देखा जाता है कि तो देखता है कि IT एक्ट, जैसे मैंने आपको आगे समझाया कि कंपनीज जो है उनको जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना होता है वो IT एक्ट के मुताबिक करना होता है. क्योंकि IT का लॉ क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी का लॉ क्या बोल रहा है, तो दैट वे दे हैव टू डू दिस कंप्लायंस ऑडिट कि हमने जो IT का सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया है वो एज पर द लॉ साथ है कि नहीं. तो दिस कैन बी यूज्ड बाय द कंपनीज फॉर द एम्प्लॉयज. तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए. और अगर आप कभी फ्यूचर में कंपनी खोलना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ब्रॉड पॉइंट्स which can help you in protecting your interests, right? So with this, I have finished my third topic as well, and I think I'm going on time. Now, the last topic is something which nobody is talking, and I think I don't want to take this, with an ego, but I would like to give you this clarity. So this is a very interesting topic. This is, I think, we have an IEEE platform. I think we have discussed this. I have discussed this. I think IEEE platform is the first platform which is discussing this topic, and you can just see the topic title: cyberspace and stress and anxiety.
this is a great topic. I think we all have seen this trouble. I think during this lockdown period. Because अब देखिए क्या होता था कि जब लॉकडाउन नहीं था तो our internet connection or our internet activity was restricted because हम क्लासरूम में बैठे हैं या हम ऑफिस में बैठे हैं या हम कंपनी में बैठे हैं. And naturally we are doing some work and definitely we are not continuously connected to the cyberspace. And अगर होते भी थे तो एक्टिव नहीं थे. But after this lockdown, it is seen that लोगों का online presence जो है is extremely high. And it has gone double or we can say more than that. और उसके पहले से बहुत सारा रिसर्चेस वर्ल्ड वाइड चल रहा था कि साइबर स्पेस जो है, जो पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है या नॉट ओनली सोशल मीडिया, पूरा का पूरा जो साइबर स्पेस जो है is creating lot of diseases, lot of stress, lot of anxiety in the minds of young people. और आप देख रहे हैं बॉलीवुड में बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं इसमें साइबर स्पेस पे क्या हो रहा है. बहुत जने बोल रहे हैं कि बहुत सारा, आई डोंट वांट टू नेम समबडी, आई डोंट वांट टू ट्रबल सम सोल जो अभी इस दुनिया में नहीं है. But ultimately these are the problems of cyberspace. You can just read the language, you just try to read my wording, you will really be able to make a meaning out of it. So researchers across the globe have proved that constant use of cyberspace and technology leads to heavy stress. ये पूरा वर्ल्ड वाइड हम लोग बहुत पीछे है इसमें, बट कनाडा, यूएसए, यूके, ऑल यूरोपियन कंट्रीज, दे हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च. वो लोग पिछले 20 साल से रिसर्च कर रहे हैं. उनको पता है कि टेक्नोलॉजी यूज करने से फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हैवी स्ट्रेस आता है. आई होप इट इज वेरी कॉमन. सब लोग ये बोलते हैं कि जब बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं या बहुत ज्यादा लैपटॉप यूज करते हैं तो हेडेक होता है, तो आइस का प्रॉब्लम होता है. बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के सामने रह रहे के आप एक साथ 5 6 7 प्लेटफॉर्म्स पे लाइव होते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट होता है. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. बहुत सारा एंजाइटी आता है. देखिए एंजाइटी क्यों आता है? इट इज प्रूवन बाय साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, वर्ल्ड वाइड इसका रिसर्च भी हो चुका है. क्यों एंजाइटी आता है? तो सपोज आप अभी 1-1.5 घंटे से ये सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये साइबर लॉ का प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, तो आपको एक एंजाइटी आता है 1-1.5 घंटे में फेसबुक के ऊपर किसी ने क्या स्टेटस अपडेट कर दिया होगा, व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने क्या मैसेज किया होगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये भी सुनना है, मुझे वो भी देखना है, तो ये भी देख रहा हूँ, मैं वो भी सुन रहा हूँ. दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? सेकंड, थर्ड इज डिप्रेशन. डिप्रेशन बहुत रीजन से आता है लेकिन जो मेजर केस है यंगस्टर्स में वो ये है कि अब देखिए हो सकता है कि आपने कोई पोस्ट किया, आपने अपना फोटोग्राफ पोस्ट किया या मे बी फॉर एग्जांपल आपने कोई और चीज पोस्ट किया और हो सकता है कि आपको उसका लाइक्स नहीं मिल रहा है फॉर एग्जांपल. यू माइट बी फीलिंग डिप्रेशन. बहुत जने इसका डिप्रेसिव मूड में आ जाते हैं. हो सकता है कि आपने देखा कि कोई पर्सन जो है वो फॉर एग्जांपल लेट्स से लॉकडाउन पीरियड में कहीं पे फॉर एग्जांपल घूमने निकला है और उसने बढ़िया फोटोग्राफ्स अपलोड किए. यू माइट आल्सो फील डिप्रेशन कि देखिए नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ व्हाटएवर हेल्थ रीजंस, व्हाटएवर, देयर आर मेनी मेनी रीजंस. एंड कहीं आपने सुना भी होगा कि बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ऐसे भी केसेस आए कि जहाँ पे यंग स्टूडेंट्स ने या यंग बच्चों ने या अभी तो बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी सुसाइड कमिट किया है या मे बी अपना कुछ और हेल्थ इश्यूज हो गया है. देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, राइट? फिर द फोर्थ वन, साइबर क्राइम. तो ये तो आपको पता ही है, साइबर स्पेस जो है उसमें जब स्ट्रेस होता है, जैसे मैं आपको एक केस बताया था कि वो बॉय को गुस्सा आ गया तो उसने क्या किया, अपने गर्लफ्रेंड का फेक प्रोफाइल क्रिएट कर दिया, या अपने वाइफ को ऐसा जो वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा था उस केस में वाइफ को एडल्ट पिक्चर्स भेज दिया. सो मेनी मेनी साइबर क्राइम्स आर हैपनिंग बिकॉज पीपल आर इन स्ट्रेस, पीपल आर इन एंजाइटी, राइट? लोग देख नहीं पाते हैं कि ये साइबर स्पेस पे क्या चल रहा है. दैट इज अ बिग ट्रबल. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया. एक फोबिया क्या होता है? फोबिया आप समझते हैं, राइट? अगेन वन काइंड ऑफ डर. एक फोबिया क्या होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है और मैं 5 घंटे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ. देयर आर मेनी मेनी थिंग्स रिगार्डिंग दिस फोबिया. फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो वर्ड किसी ने सुना होगा, फोमो बोलते हैं, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट. देन प्रॉब्लम्स इन पर्सनल लाइफ. तो अभी ये बड़ा डेंजरस थिंग है. आपने शायद सुना होगा, मैंने एक केस तो आपको बताया अभी, लेकिन आपने शायद सुना भी होगा कि बड़ा का पर्सनल लाइफ जो है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आ गया, हस्बैंड वाइफ भी आ गया, या मे बी लिव इन रिलेशनशिप भी आजकल चल रहा है, जो भी है. सो मेजोरिटी ऑफ पर्सनल लाइफ जो आजकल ट्रबल चल रहा है उसका मेजर रीजन है ये साइबर स्पेस, सोशल मीडिया. आई गिव यू सिंपलेस्ट एग्जांपल कि आप सपोज आप तो यंग स्टूडेंट्स हैं, तो सपोज जो प्रोफेसर्स है, जो मैरिड है, प्रोफेसर्स फॉर एग्जांपल, तो कोई भी मैरिड पर्सन है फॉर एग्जांपल, वो देख रहा है, मेल है या फीमेल है, वो देख रहा है कि रात को 1 बजे मेरा जो स्पाउस है, माय हस्बैंड और माय वाइफ इज डूइंग चैटिंग विद समबडी ऑन व्हाट्सएप.
तो आप देखिए नेचुरली एक डाउट क्रिएट शुरू हो जाता है, डाउट होना क्रिएट शुरू हो जाता है, राइट? तो ये किसके साथ चैटिंग कर रहे होंगे, क्या बात चल रहा होगा, 1 बजे क्या है, राइट? हो सकता है कि इट कुड बी एनीथिंग, यू नेवर नो, बट दीज आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पर्सनल लाइफ, लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और ये मैं जो आपको बोल रहा हूँ इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस हैव बीन डन अक्रॉस द वर्ल्ड। लोगों ने बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं और अकॉर्डिंगली इसमें एक इंडियन तरीका उनको मिला है जिसका मैं आगे आपको सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। एंड लास्ट इज प्रॉब्लम्स इन प्रोफेशनल लाइफ। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने डेटा चोरी किया या कंपनी ने एलिगेशन डाल दिया कि आपने कोड चोरी किया। ऑल थिंग्स आर ट्रबल्स इन द साइबर स्पेस, क्रिएटिंग लॉट ऑफ पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड प्रोफेशनल लाइफ प्रॉब्लम। नाउ हाउ टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम? तो बहुत सारा टेक्निक्स है, लेकिन एक फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी है, अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है, उसके एक डॉक्टर डेविड वुल्फ है, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च किया। और ये रिसर्च जो है, जब हम डिटेल में जाएंगे, मेरे पास 1-2 स्लाइड है, जब हम डिटेल में जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये कोई रिलीजियस बात बोल रहे हैं। मुझको भी शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये क्या रिलीजियस बात बोल रहे हैं, एकदम ये टाइप कास्ट बात बोल रहे हैं कि यही चीज करना है और यही बेस्ट है। लेकिन जब मैंने भी ये रिसर्च को फॉलो किया और मैंने भी जब रिसर्च में डिटेल में स्टडी किया तो मुझे पता पड़ा कि वर्ल्ड वाइड आई कैन से मतलब अगर हम बात करें नंबर्स की, तो आई कैन टेल यू करोर्स ऑफ पीपल, irrespective of their religion, irrespective of their faith, they are doing this kind of practice जो मैंने टाइटल दिया है, it is called महामंत्रा meditation to control stress, depression and many other things, right? ये साइबर का स्ट्रेस है या नॉन साइबर का स्ट्रेस है, दोनों को एप्लीकेबल है, राइट? साइबर स्ट्रेस और स्ट्रेस का मैंने टॉपिक इसलिए लिया ताकि आप समझ पाओ कि मेजर स्ट्रेस आजकल वहां से आ रहा है, लेकिन बहुत सारा और भी रीजन होता है पर्सनल लाइफ का, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ का, जिसमें भी स्ट्रेस और डिप्रेशन लोगों को आ जाता है। तो कोई भी रीजन है, साइबर है या नॉन साइबर है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, तो ये डॉक्टर डेविड वुल्फ ने क्या रिसर्च किया आप इसको देखिए। और इसको आपको रिलीजियसली नहीं लेना है, आप जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा ये एक स्पिरिचुअल एंगल है। इट्स वेरी वंडरफुल थिंग, जस्ट रीड टू रीड, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और किसी को ये चाहिए तो मैं बाद में स्लाइड शेयर भी करूंगा। सी दिस, डॉक्टर डेविड वुल्फ of Florida State University carried out detailed research using our Vedas। मैं our Vedas इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इंडिया की सारी वेदास है ना, सबने सुना होता है वेद उपनिषद, राइट? पूरा शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, यूजिंग our Indian Vedas and Upanishad etc. and he has found that this is the age of Kali। सबने वर्ड सुना होता है कलयुग, राइट? और कलयुग प्रूव हो चुका है बिकॉज ये कोरोना वायरस जो है इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कलयुगा, जिसमें हम मून पे पहुंच चुके हैं या हम मार्स पे पहुंच चुके हैं, लेकिन पिछले 5-6 महीने से हम ऐसे वायरस जिसको हम देख नहीं सकते, उसको हम अल्टीमेटली फाइट नहीं कर पा रहे। दिस इज द मीनिंग ऑफ कलयुगा। कली का मतलब क्या होता है? देखिए उन्होंने रिसर्च में लिखा है और मैंने भी ठीक से पढ़ा है इसको। कली वर्ड केम फ्रॉम द कलह। कलह सबने सुना होता है, झगड़ा जिसको हम बोलते हैं, राइट? छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है, मतलब दैट इज कॉल्ड क्वारल्स, डिस्प्यूट्स एंड फाइट्स। तो हम लोग देखते रहते हैं, राइट? कलयुग में क्या होता है, छोटी छोटी बात पे हमारा फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है, फैमिली के साथ झगड़ा हो जाता है, राइट? छोटी छोटी बात में हम ऑनलाइन किसी के साथ डिस्प्यूट में पड़ जाते हैं। Many other things are also there, so that's why it is called Kali Yuga. Then he is saying, Dr. David Wolf is saying that the effect of Kali Yuga is that even in every small matter there is a big fight. We all know that. The above situation automatically leads to anger, stress, depression in the entire human society. ये साइबर स्पेस पे भी होगा, सोशल मीडिया पे भी होगा, घर पे भी होगा, ऑफिस में भी होगा. So this is very common thing. Now what he has found a solution, so he has gone to our कली संतरण उपनिषद। मैंने इसको हाईलाइट किया है, ठीक से इसको पढ़ना, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। एक स्पेशल उपनिषद है जो कलयुग के लिए डिस्क्राइब किया गया है। कलयुग के लिए एक स्पेशल उपनिषद है जिसका नाम ही है कली संतरण उपनिषद। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द नेम? कली संतरण उपनिषद, स्पेशल उपनिषद फॉर द कलयुग। एंड ही फाउंड महामंत्रा फॉर द मेडिटेशन इन कलयुग। इस कली संतरण उपनिषद ने एक महामंत्रा दिया है। मंत्रा आपने वर्ड सुना होता है, इसके बजाय ये मंत्रा दिया है जो मन को जो रिफ्रेश करता है उसको मंत्रा बोलते हैं। एक महामंत्रा दिया है जिसके थ्रू मेडिटेशन करना चाहिए, so that we can remain free from the stress, depression
and other negative energies, right? So you have to be very very clearly understand this point, और ये personally आपको बहुत help करेगा, आपके family members को help करेगा. मैं इसको बहुत सालों से practice कर रहा हूँ, मेरे family members practice कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे IEEE के जो friends हैं वो भी try कर रहे हैं. So just try to understand this is a research done by some foreign researcher using our Vedas. हमने तो नाम भी नहीं सुना था. मैंने जब पहली बार इसको पढ़ा तो मुझे पता ही नहीं था कि उपनिषद क्या है, उसमें कली संतरण उपनिषद क्या है. मैंने उसका कॉपी मंगवाया, फिजिकल कॉपी मैंने देखा और मैंने उसमें महामंत्र देखा, मैंने प्रैक्टिस शुरू किया. आई एम गेटिंग ग्रेट रिजल्ट. जस्ट ट्राई टू सी दिस. और ये उनके रिसर्च पेपर का थोड़ा मैं एब्स्ट्रैक्ट लिया है इंटरनेट से, आपको मिल 70-80 पेज का है, वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. यू वांट यू कैन सेंड मी ईमेल. अब इसको टाइटल देखिए, ये इनका इस साइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है. जैसे टाइटल एग्जामिनिंग द इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स on psychosocial functioning, and it is done by David Wolf. Doctor is a doctor now, and उनके जो गाइड थे he was Dr. Neil Abel. और इसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उन्होंने दिया है. पूरा एब्स्ट्रैक्ट हम नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ कंक्लूजन पढ़िए, जो आई थिंक लास्ट 4th लाइन में जाइए सर. इस स्लाइड के लास्ट 4th लाइन में जाइए, कंक्लूजन है. आई होप यू कैन फाइंड दैट कंक्लूजन्स. द ऑथर्स सजेस्ट, मतलब जिन्होंने रिसर्च किया है, द ऑथर्स सजेस्ट that Mahamantra, again he is using this word Mahamantra, मैं रिवील करूंगा वो महामंत्र क्या है. You will be shocked what is that Mahamantra. That the Mahamantra has the potential in addressing the problems related to stress and depression, and that it be considered one possible component feature of वो सोशल वर्क प्रैक्टिस. मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं तो सोशल वर्क प्रैक्टिस में आप ये स्पिरिचुअल अप्रोच लेके आ सकते हैं, जिसमें आप महामंत्रा का मेडिटेशन कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. करोड़ों फॉरेनर्स जो है वो भी विदाउट वरिंग अबाउट देयर रिलीजन, विदाउट वरिंग अबाउट देयर फेथ, दे आर डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म एंड नॉट फ्रॉम द रिलीजियस प्लेटफॉर्म. एंड दिस इज द कंक्लूजन गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिसर्चर. And I'll show you this Mahamantra. You will be shocked to know this. It is coming from the Indian origin. Nobody should take it religiously. You should take it spiritually. और मैं इसका आपको थोड़ा और रिसर्च भी 2-5 मिनट बताऊंगा. So what is the Mahamantra for this from the Kali Santana Upanishad? I think आपके यूनिवर्सिटी में इसका एक सेमिनार भी हुआ था, मुझे शायद याद है, मीडिया में कवरेज पड़ा था इसका. So this Mahamantra is a great Mahamantra. आपने सुना होगा. It is called Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again I am repeating, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बहुत जने इसको रिलीजियसली लेते हैं, पर आप इसका जब मीनिंग समझोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इट इज नॉट रिलीजियस थिंग, इट इज स्पिरिचुअल थिंग कमिंग आउट ऑफ अ बोनाफाइड उपनिषद. And I think I have traveled across different countries, and I have seen millions of foreigners, even though they are following whatever faith, they are following this Mahamantra meditation. Sometimes they are dancing with this Mahamantra meditation also. And I have seen that a lot of people are curing a lot of stress, depression and other diseases with the help of this Mahamantra practice. और आप अगर इसका थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे how to remain stress free in cyberspace using Vedic science. So this leading research, you can see the language, you can see the title. All Vedic science scriptures recommend below techniques of mantra meditation. It is now approved by leading researchers of international universities. मतलब आप हार्वर्ड का भी रिसर्च दे सकते हैं, आप आई थिंक स्टैनफोर्ड का भी रिसर्च देख सकते हैं. जितना भी लीडिंग यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड का, सबने रिसर्च किया है मंत्रा मेडिटेशन के ऊपर. और इतना सिंपल बोला जाता है, बहुत सारे रिसर्च है, अलग अलग रिसर्च के आउटपुट होते हैं, लेकिन मैं ब्रॉड बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ. ऐसा बोला जाता है कि जब आप सुबह उठेंगे और आप अपना काम शुरू करेंगे, तो काम शुरू करने से पहले, दिन शुरू करने से पहले 10 मिनट आप ये महामंत्र मेडिटेशन कीजिए. फुल वे टू बिगिन योर डे. देन जब आपका ब्रेक टाइम या कुछ आपका और ब्रेक टाइम, so definitely at that point of time you can also do some 10 minutes of महामंत्र meditation. 30 minutes का अगर कोई महामंत्र मेडिटेशन कर रहा है, so definitely he can remain free from stress, anxiety and many other problems. तो कोई बोलेगा कि ऐसे कैसे फ्री हो सकते हैं, what is the fundamental behind this? बहुत सारा डिटेल है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ. लेकिन फंडामेंटल ये है, मैं रिसर्च पेपर आपको शेयर करूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है ये सब चीजें जानने में. फंडामेंटल ये है कि जब हम
जब हम मदर के वुम्ब में, मदर के पेट में जब हम एंटर होते हैं, जब किसी का बर्थ होता है, तो सबसे पहले लाइफ जो है, वो जो पर्सन है, ही एंटर्स इनटू द मदर्स वुम्ब, मदर्स मदर लैंग्वेज। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? जब बर्थ का फर्स्ट डे होता है किसी का, तो उस टाइम पे सबको पता है कि बॉडी नहीं होता है, एकदम छोटा सा पार्टिकल होता है, और उसके अंदर सोल होता है, आत्मा होता है, प्राण होता है, राइट? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और यही चीज हम देखते हैं कि जब किसी का डेथ होता है, हम देखते हैं कि बॉडी है, लेकिन उसमें से आत्मा आ जाता है, राइट? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इज वेरी क्लियरली। तो कोई भी पर्सन जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, कोई भी जीव है, कोई भी लिविंग एंटिटी है, उसका जो एसेंशियल चीज है वो क्या है? प्राण, सोल या लाइफ। फिर उसके ऊपर बॉडी होता है। कैसे बॉडी ग्रो होता है? बिकॉज मदर जो होता है, मदर के पेट में होता है, तो मदर वो अपना फूड लेते हैं, और उस फूड में से वो बेबी का बॉडी क्या होगा? ग्रो करेगा। तो पहले क्या होता है? बेस क्या होता है? फाउंडेशन क्या होता है? लाइफ और प्राण और सोल। उसके ऊपर क्या होता है? फिर आपका बॉडी ग्रो होता है। और जब बेबी मदर के मुंह से बाहर आता है, फिर वो रियल लाइफ में आता है, फिर धीरे धीरे उसका माइंड डेवलप होता है। तो उसका एजुकेशन के ऊपर से, उसका फ्रेंडशिप के ऊपर से, उसका कल्चर के ऊपर से माइंड डेवलप होता है। तो तीन चीज होता है कोई ह्यूमन बीइंग के लाइफ के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल या प्राण, इट इज अ फंडामेंटल थिंग। उसके ऊपर बॉडी ग्रो होता है, और उस बॉडी के अंदर फिर माइंड डेवलप होता है। अकॉर्डिंगली थ्री थिंग्स आर देयर। देखिए, हम लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, राइट? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो जो बॉडी हमको मिला है, उसको फीड करते हैं बाय फीडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो अकॉर्डिंगली बॉडी बढ़िया से नरिश होता है, और बॉडी ठीक से चलता रहता है। माइंड को भी हम फीड करते रहते हैं। माइंड को पूरा दिन हम फीड करते रहते हैं। कर रहे हैं वो पढ़ाई के थॉट्स होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं जॉब के थॉट्स होते हैं, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के थॉट्स होते हैं, पर्सनल लाइफ के थॉट्स होते हैं। तो माइंड का तो फीडिंग कंटिन्यूस चलता रहता है, और माइंड भी अकॉर्डिंगली नरिश होता रहता है। अगर बॉडी और माइंड को आप फीड करना बंद कर दो, तो सबको पता है क्या हाल होता है, राइट? अगर कोई भी उपवास वगैरह करता है, व्रत करता है, तो सबको पता है एकदम बॉडी और माइंड जो है वो डेफिनेटली थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं। तो सिमिलरली आप समझिए, बॉडी का अगर कोई फीड कर रहा है, माइंड को अगर कोई फीड कर रहा है, तो वाई नॉट फीडिंग टू द सोल? वाई नॉट फीडिंग टू द प्राण और द आत्मा, विच इज प्रूवन बाय ऑल द रिसर्चेस, राइट? हमारा वैदिक साइंस जो है वो तो 5,000 साल से बोल रहा है। हम लोग नहीं मानते, बिकॉज मैं और आप सब फॉरेन जनरेशन हो चुके हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं कि नहीं, हार्वर्ड ने बोल दिया तो हम मानेंगे, स्टैनफोर्ड ने बोल दिया तो हम मानेंगे, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर ने रिसर्च किया तो हम मानेंगे। इसलिए मैंने आपको ये पेपर दिखाया जो एक्चुअली फॉरेनर ने रिसर्च किया है, कि जैसे आप बॉडी को फीड करते हैं, जैसे आप माइंड को फीड करते हैं, वैसे आपको सोल को भी फीड करना पड़ेगा। और सोल को आप क्या फीड कर सकते हैं? जो सुपर सोल का नाम है, जो अल्टीमेटली परमात्मा का नाम है, जो अल्टीमेटली सुप्रीम पर्सन का नाम है, वो आपको फीड करना है। एंड दैट इज द वे अल्टीमेटली महामंत्र मेडिटेशन इज गोइंग टू गिव अ फूड फॉर द सोल। एंड दैट इज द वे ऑल प्रॉब्लम्स आर गेटिंग रिजॉल्व, राइट? आप डिटेल में अगर रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि हजारों लोगों के ऊपर ये ट्राई किया गया, और ट्राई करने के बाद रिजल्ट ये आया कि बहुत जनों का स्ट्रेस लेवल, बीपी लेवल, बहुत जनों का एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल डाउन हो गया। उसके साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट है। देयर इज नथिंग इन जनरल आई एम टॉकिंग। मैंने भी एज अ लॉयर बहुत सारा डीप में स्टडी किया है, बहुत सारा टेक्निकल पर्सन की तरह मैंने इसको स्टडी किया है। देन आई एम फॉलोइंग इट। आई होप यू कैन आल्सो फॉलो दिस, एंड यू कैन आल्सो हैव, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आल्सो सेंड टू मी. So with this, I'm concluding this presentation, and I wish you all, a safe journey, both in the personal life, and during this COVID time, and definitely on the cyberspace. You should have a safe journey. And anytime you face any problem, you can, ultimately write to me. My email ID is advocate@gmail.com, and I'm available on IEEE platform. I am a part of IEEE Executive Committee of Gujarat, so you can anytime contact your professor, and you can approach me through IEEE platform. So thank you very much. If you have any questions, you can ask. Sir, first of all, before student starts to ask any question, I have one question in my mind. Yeah. And the question is that, sir, generally this is what our natural thinking of our student is that Yeah. after completing the BTech, they are opting for either MTech, maybe in India, maybe in foreign countries. Correct? Yeah. They are, getting the jobs in maybe IT development companies and Yeah. software development. They are accepting it as a designation. Correct? Yeah. Maybe some of them are going into the networking side. Some of they are going into the database side also.
Sir, I just want to ask you the question that whether is there any possible chances that if any student wants to be a lawyer, a cyber, space lawyer, I mean, just like you, correct? Yeah, yeah. So, is there any Yes. chances, or I mean, what kind of crash courses, or maybe certification courses, or maybe master courses are there by which you can, I mean, they can be, make a profession in this, the domain. Yeah, yeah. So what I did, I will tell you. When I finished my IT, then I did some courses in cyber security. That is extremely important when you want to work in cyberspace. So that is required. So you can go for certified ethical hacking course, or maybe the course of you can join. Abito, in my days, it was master's course was not available. But I think nowadays, I think Apka Ganpati University has started masters in cyber security, right, sir? I think that is started, no? Right? That you can pursue. So that way you are good with cyber security, and then you should pursue LLB. That is a 3 years course after graduation or a post graduation, and then you postgraduate course in cyber laws. Then you will be the best combination to work in this particular cyber field. And as Professor rightly said, it is a wonderful field. Still, after my 16, 17 years of my career, I can see that still there are very less people who are software engineers, cybersecurity professionals, and cyber. So Correct. naturally, this requires a lot of time. You need to study a lot of things. I studied almost. I'm still studying. Every year, I'm taking some certification. This field is legal and technical both. But at least you have to complete your masters in cybersecurity, then LLB, then your masters in cyber law, and then definitely you can pursue this time. That is okay. But in LLB and in masters in cyber law, you can have kind of evening colleges you can select, and thereby you can continue with your job. You can study in the evening, and you can continue with this kind of process, right? Yeah. Yes, I think that's the best choice. And sir, a couple of the students are asking to share your PPT. So I would Yeah. make a request that I will share some relevant things, which are important things. sure, So sure, sure, sir. I'll do cut and paste and I'll share, because sir, there are some cases which are filed by our firm, so I'll not share. But जो relevant चीजें हैं जो I can share, that I'll share. Absolutely, absolutely, sir. Now let's go to the question answer section so that we can address some of. I hope it was relevant and people could understand what I was talking. Correct. Sir, one of the question has been asked by the Shivam Patel that sometimes someone's use others content and change only sound, just like we have webinar and somehow person shoot a screen recording and change the sound at that time. If we share this video, that will be considered as a crime as you share this illegal video. I need to understand the question. Can I see that question? Is it on screen? Actually, he want to ask something that, for example, you are representing some, copyright stuff to some, person, or maybe against to the audience. So Yeah. when somebody, has installed a screen recording kind of a software on his or her Correct. PC, Okay. and if he is recording the, Got it. the Got of that it. content, Got so it. does it call as a cyber, crime Exactly. or not? So that's why I want to read the question if it's typed, but no problem. I got the point. So this kind of first of its kind of case we have filed during lockdown. Our firm has filed that. इसमें क्या होता है कि let's say somebody is doing a presentation. So what case we have filed? I'll discuss that case. I was not able to cover this. ये Zoom का ही था. One is a of listed company, the limited entity listed company. उनका board meeting चल रहा था Zoom पे, because सबका board meeting online चल रहा है, right? And एक director जो थे उसमें से, he is authorized person to be a part of that board meeting. पर उन्होंने क्या किया, अपने सन को अनऑथराइज तरीके से उस मीटिंग में रखा. जैसे यू कैन नॉट सी दैट व्हाट इज देयर आउटसाइड दैट पर्सन मीटिंग्स एंड ऑल, यू कैन नॉट सी द ब्रॉड व्यू ऑफ द रूम. और वो बंदे ने क्या किया कि पूरा मीटिंग जो है वो इलीगली रिकॉर्ड किया ऑन सम पर्सनल डिवाइस, एंड देन रिकॉर्ड करके वो सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर दिया. दैट वाज अ वेरी वेरी क्रूशियल बोर्ड मीटिंग ऑफ दैट कंपनी, जिसको लीक होने से उस कंपनी को बड़ा लॉस हुआ. तो दैट देयर बाय इट इज अ साइबर क्राइम. क्लियर क्या है कि दिस मीटिंग is not supposed to be recorded by unauthorized person or not by anyone, and if it is ultimately clearly conveyed to the ultimately team members that this is a copyrighted presentation and this should not be recorded, recording should not be done either by meeting device, either by a meeting software, or maybe ये meeting record करने के लिए कहाँ आपको software चाहिए कि आपके मोबाइल में भी आप record कर सकते हैं, right? You can record screen easily on a mobile. So if it is clearly conveyed to them, and then if they are doing,
that is definitely falling into a cybercrime activity. So be careful. Sir, one more question is that our one of the students wants to join RO as a security personnel. Correct. So as far as my knowledge is concerned, RO, sir, research and analysis wing. Okay, raw he wants to do. Yeah. Yes, sir. So I mean, what are the options available to join a RO as a cybersecurity personnel? Yeah, so that is possible, definitely. Not only RAW, there are many other agencies like CERTIN is there, and CyPad is there, and I think government is definitely super active in this cyber space. And there are many things going on. But for that, I think first of all, you need to finish your graduation and post graduation in cyber security. And then that is the first and foremost thing. And then I think you have to clear some exams, which is there taken by these organizations. That is the way you can crack. I think by doing plain engineering, you cannot have any chance to join this kind of organization. And I think, sir, to join the RO, I think they are asking for, I mean, they are, the eligibility criteria to join the RO is the first you have to crack with the IPS. If you have, substantial aware. amount of experience in the, I mean, as an IPS career, then and also then, RO is not approaching anybody. They are, I mean, you cannot approach RAW, but a RAW will approach you. That I will hire you, and all these kind of operation that will be done very secretly. Correct. So if you don't want to join RAW, for example, because that is not possible, IPS and all is I think very difficult to crack and be getting experience. So if you want to join some other government organizations in cyber security, then one is called CERTIN. It's called Computer Emergency Response Team of India. It is a Government of India organization. And there are many agencies across Gujarat and across all the states are having cyber agency. So they are hiring. Even if you want to join police, master's degree in cyber crime, and I think DRDO somebody is writing. Yeah, so DRDO is also one of that particular agency. That you can join RAW. I'm not aware, but these all other cyber agencies you can join by completing your master's course in cyber security and getting some good experience in government organizations as a trainee. I know many of our students, even IEEE में भी हमने बहुत सारे cyber के programs किए थे, अभी तो नहीं कर पा रहे, but in earlier when I joined IEEE as IEEE member, I had Yes, sir. we paid around 1,000. At that moment, I was student, sir. अच्छा, I'm not aware. I'm really sorry. Yeah. I mean, you are talking about the era of 2013-14 probably. Yeah, correct. I was an MTech. I was a student. Excellent. Sorry, I don't recall आपका पूरा face वगैरह. Yes, sir. Actually, due to lockdown, Yeah. Anyways, sir, one more question. One student is asking that nowadays there are lots of memes are going on the social media. So creating or using, someone's face as a, in the meme kind of content. Yeah. Or not? And there are two aspects of this. One is the freedom of, this speech, freedom of person to, express his opinion. These memes are definitely creating a lot of troubles. And I agree. That if you are a public, then that right of criticism is going to every individual. But in that factually you have to see, factually क्या देखना पड़ेगा कि मीम के साथ साथ बहुत सारा ऐसा चीज भी होता है जो शायद अल्टीमेटली चीज को रिलेट करेगा जो अल्टीमेटली किसी का डिफेमेशन कर रहा है, किसी को बदनाम कर रहा है, then that will fall into some criminal activity. So you have to actual fact हमको देखना पड़ेगा. But just by creating meme, it is not going to create a big legal liability. Yeah, but still देखिए लीगल चीज में ये समझना पड़ेगा कि लॉ जो है इज लाइक काइंड ऑफ एनाकोंडा बोलते हैं लॉ को. तो किसी ने मीम किया है तो किसी को केस करना है तो फॉर द सेक ऑफ फाइलिंग अ केस ही कैन फाइल अ केस. तो चलो वो जिसने मीम क्रिएट किया है वो जीत जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. और हारने जीतने में 5 साल 10 साल लगता है जो मैंने आपको आगे समझाया. दैट मच स्ट्रगल माइट बी देयर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट. तो अगर आपके पास इतना सारा टाइम है और अगर आपके पेरेंट्स के पास इतना सारा पैसा है to make sure कि 5 साल 10 साल केस चले, then you should be doing all these activities, right? It's better that you focus on creative activity instead of some, creating nonsense memes and troubling somebody and then, harassing that person and then the person might file a case. केस फाइल करना जैसे मीम क्रिएट करना आपका राइट है, जैसे केस फाइल करना उसका राइट है, और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि सही क्या है गलत क्या है.
I Yeah. request, some of the students to keep your, lines of question, somewhat short. There is a big description he has written by Rahul Khanna. Sir, a fraud is going right now that if you post something to sell on any e-commerce website, I think he's talking about, Quikr and Yeah. all kind of second-hand, Yeah. some buyers will show interest and will call you and will tell you that he is interested and blah blah blah, and will add that they will choose Google Pay or transaction. Afterwards, Yeah. they Yeah. will send the QR code of the rupees 10 and try, and then they will share a QR code of the total amount, and when I mean Yeah. fraud Very which is common. happening on the second-hand store. Sir. Yeah, very common. We have also received this kind of cases. See here, because in this kind of cases, mostly amounts are very small. So therefore, times to go to the courts, to recover this money because legal costs will be very, very high. So one of the best ways to prevent this is to increase awareness about this kind of issues. So you being a student definitely can aware a lot of people. It's very important that you aware people and ultimately play a good role into that. That's the first thing. Second thing is very crucial कि ये जो हो रहा है इसको रोकना कैसे है तो गवर्नमेंट इज आल्सो एक्टिव अबाउट दिस आई होप यू आर अवेयर government started one online cyber crime portal. It's called I forgot the name, cybercrime.gov.in probably, cybercrime.gov.org. I'll send you that link. So on that you can go and you can file a complaint, and based on that पुलिस डिपार्टमेंट जिसका भी रिलेवेंट अथॉरिटी होगा वहां से आपको कॉल आएगा. इट्स इंडियन पोर्टल, लेकिन जहाँ पे आप होंगे जिस स्टेट में जिस सिटी में जिस टाउन में वहां से आपको कॉल आएगा. और एटलीस्ट वो क्या करेंगे कि जिस जिस कॉल से ये अल्टीमेटली जिस इलीगल नंबर से कॉल आ रहा है या जिस इलीगल ऑनलाइन अकाउंट से लोग यूज कर रहे हैं सारा फ्रॉड कर रहे हैं उसको एटलीस्ट वो रिस्ट्रिक्ट करने का ट्राई करेंगे. एंड देयर बाय वी आर ट्राइंग टू कर्ब दिस प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. सो दैट वे गवर्नमेंट इज डूइंग nice activity into that. But otherwise, awareness. Sir, actually, he's asking that when you are, scanning the QR code, the Yeah. whole account will be wiped out. So he's asking that actually, what technical story will go, after that. That is a very clear thing. Na? It's one kind of a Trojan or a malware which is available ultimately into that code. That when you scan that, automatically that illegal software gets inserted into your device, and then ultimately everything, because everything is enabled in your mobile, so that the illegal software bypasses all the controls of your mobile. So they easily fraud can be OTP वगैरह जो भी आएगा वो अपने आप वो फैच कर लेगा. It's very common. Technically there is nothing more to it's not complicated. It's very common. ये करने वाले जो है you will be shocked. And I think आपने मूवी देखा होगा जाम तारा करके एक मूवी है नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न प्राइम पे. बस कुछ नहीं करनी. ये जो करने वाले हैं वो 10वीं फेल होते हैं, वो 12वीं फेल होते हैं. ये सारा ट्रेनिंग तो मतलब हब ऑफ साइबर क्रिमिनल्स झारखंड में एक एरिया है जहाँ तारा करके. Yes, So this failure people can do this. Technically तो इसको रोकना पॉसिबल नहीं है अभी. Only thing awareness and then some legal actions, and that way you can stop this trouble. Yeah. Sir, one person is asking about downloading illegal movies from the Yeah, internet, big trouble. Telegram and Yeah, very big trouble. Because क्या होता है कि ये सारा जो चीज़ है अल्टीमेटली तो सारा जो चीज़ है अल्टीमेटली नाउ थिंग्स आर मॉनिटर्ड वर्ल्ड वाइड, and it is not falling only into the cyber law, it is also falling into IPR law. It's called intellectual property rights, copyright जिसको बोलते हैं, right? इन अभी वर्ड्स में होगा. और इसमें कई बार इंटरनेशनल लिटिगेशन हो जाता है. बिकॉज सपोज आपने इलीगल मूवी डाउनलोड किया और हो सकता है कि कोई फॉरेन कंपनी जो है फिल्म प्रोडक्शन कंपनी जो है उसका वो मूवी है, तो वो जो केस फाइल करेगी उसका अमाउंट देख के ही किसी को 2-3 दिन तक होश नहीं आएगा. Therefore, very very careful. I hope you are able to understand. Because क्या होता है कि अल्टीमेटली हमको लगता है कि पायरेट मूवी डाउनलोड कर लिया कौन देखने आने वाला. तो पायरेट मूवी डाउनलोड करने के अंदर उनका एक ट्रैप है और उस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ अल्टीमेटली ट्रैकिंग टूल रखा है. हो सकता है कि आपका पूरा डिटेल्स उनके पास आ जाए, हो सकता है कि सीधा वो केस भी फाइल कर दे. सो देयरफॉर एडवाइजेबल
not to do this, and accordingly, protect yourself. Yeah, I have one assignment at 6 o'clock. So I want that now we should take one question and then we should conclude. Okay, so I think Dhiman Patel wants to unmute himself. So Dhiman, are you ready? I am unmuting you. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, completely. Yeah, Dhiman. Great session. Sir, recently I get one message from my WhatsApp. I share it on a comment section. Yeah. This is from reputed company KBC, and I get message like you won 25 lakhs of lottery. Yeah. Sir, in this case, first of all, I go to Google and search about the original number of KBC, and then I Yeah. verify the original number of KBC, and I Yeah. call in the original company KBC, and I confirm that lottery happened or not. Yeah. Then they will tell me lottery happened. Yeah. Now it's interesting कि लॉटरी लगी है और मैसेज मुझे कोई और कर रहा है. So therefore, you to understand that ये एक चीज समझ लेना है कि जिस केबीसी ओरिजिनल को आपने कॉल किया होगा तो वो भी अल्टीमेटली फेक ही होगा, क्योंकि 25 लाख का लॉटरी या 1 करोड़ का लॉटरी या केबीसी या कोई भी बोल रहा है इज ऑलवेज फ्रॉड, और ये केबीसी के नाम से हो रहा है. लेकिन जैसे आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आओगे या जैसे आपका लास्ट ईयर होगा, फिर आपको हार्वर्ड से भी ईमेल आएगा या आपको स्टैनफोर्ड से भी एसएमएस आएगा कि आपका जो समर स्कूल या विंटर स्कूल का हमने यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लिया है, और अल्टीमेटली आपका प्लेसमेंट का भी हमने सारा व्यवस्था कर दिया है, और आपका वीजा का भी प्लानिंग हो चुका है, और आप यू आर फ्रॉम मेहसाणा एंड देयरफॉर यू आर अ प्रिविलेज्ड kind of person for come to US and Canada and all. So don't worry. So these are all frauds. Therefore, the smartness is that even आपको लगता है कि गूगल पे आपने कुछ वेरीफाई किया, this is also fraud. Because ultimately, Sir, interesting thing was that in this KBC provide me one original number of head, and I talk to him, and then he tell me कि लॉटरी तो लगी है आपकी, पर आपको जिसने मैसेज भेजा है वो गलत है. और मैंने बाद में जिसने मुझे मैसेज भेजा था उसको भी कांटेक्ट किया, तो वो बोल रहा है कि वो गलत है. दोनों साइड दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ. इसलिए मैं सबसे सही पर्सन हूँ. एट लास्ट सर मैंने उनको कहा कि अगर आप दोनों में से जो सही हो मुझे अपना आईडी भेजो, बाद में मैं मेरी पूरी डिटेल्स भेजता हूँ कि आप मुझे लॉटरी का चेक भेज सको. अब तक सर किसी का मैसेज नहीं आया मेरे पास. बट आप देखिए यू आर स्मार्ट, सो देयरफॉर यू आर एबल टू फिगर इट आउट. और ये जो चीज है, अगर ये कोई लेट्स से यू आर फ्रॉम नॉर्थ गुजरात में आप है, आई एम ऑल्सो माई ओरिजिन्स आर ऑल्सो इन नॉर्थ गुजरात. सो नॉर्थ गुजरात में फॉर एग्जाम्पल जो छोटा सा टाउन है, वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल किसी को ऐसा मैसेज गया, कोई ओल्ड एज पर्सन या कोई सीनियर पर्सन, एंड ही इज हैप्पी दैट ये मैंने वेरीफाई किया, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल केबीसी है. तो जैसे ही वो फंसेगा, फिर आपको और मुझे पता है कि वो क्या करेंगे, धीरे धीरे पैसे निकलवाना शुरू करेंगे. तो देयरफॉर ये अवेयर कीजिए सबको कि फ्री में लॉटरी तो क्या, फ्री में कोई अल्टीमेटली डेटा भी नहीं देता है आपको. और हम है कि जियो फ्री में डेटा दे रहा है या अल्टीमेटली या डेटा दे रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल. फ्री लंच इज नॉट पॉसिबल. अगर कोई फ्री लंच है तो वो पेट में गड़बड़ करने वाला ही है, राइट. वो अल्टीमेटली स्टेल और बासी होने वाला है. Therefore, please aware everyone. That is the best way we can protect the society. बाकी साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारा चीज जो है वो टेक्निकली हम नहीं रोक पाएंगे. By messaging and by awareing people is the best way we can protect the entire society. So with this, I'm thanking all. Yeah, thank you everyone for listening to me for 1.5 hours. It's a big thing, and I'm still stressing on Maha Mantra meditation. Any one of you want to do this? Any one of you want to try this? I have a big paper of it. You can send me an email. I can guide you on that. I'm also on LinkedIn. I'm not on other social media. I'm only on LinkedIn. So you can send me some queries, and I'll be happy to get you. And I'll definitely love that if somebody can try me in a personal life. So sir, at last I just want to request you that you please send me that research paper also along with the Definitely, I'll do that. I'll do. I can forward it to my student whosoever is interested to read it. I do that. Okay, sir. So on behalf of IEEE UEPCSP, I just conclude this session. And sir, it was I mean above and a part of the expectation which I have expected before arranging this That session. is my pleasure. Thank you. Thank you. So sir, thanks a lot. And
That's I hope we can see you. I mean, whenever the physical opening of the college will happen. yeah, and I'll visit. I'll visit. Yeah. Thank you. More such sessions. Thank you. So that's Thank you, everyone. Thank you, all the participants. Thank you. Okay. Thank you, sir.